We are pleased to congratulate and welcome Mrs. Monica Gupta of flat number B58 as co-opted member of the managing committee. We look forward to her valuable support and contributions towards the smooth functioning of the committee. I now request our Honorable Secretary to proceed with the agenda. Thank you. Today we are going to discuss about the approval of our tender document that has been issued from our PMC. I will read out the agenda. To get the approval of general body of the members of the tender document for cluster redevelopment of Manishnagar buildings number 14 to 20, 22, 27, 30, 31, 33 to 37 and 51, which has been forwarded to all the members for their perusal and inputs, if any, for the same. All members are requested to send in their queries, well, that is okay, in writing before the to enable us to put forth the same to PMC for clarification. Now Mr. Daga is here, Sanjay Daga of NX Advisory is here. He will take up the matter of explaining all about the tender documents. Good morning, friends. First, I should congratulate every one of you now that we are getting into a cluster redevelopment, which has been our dream from the day we have initiated the redevelopment process. By coming together into the 17 societies clusters, it's a win-win situation for all of us. And basis are joint working with the another PNC, T-Arch. We have come across with the last final draft of tender, which has covered most of the aspects which we have discussed from time to time, which should form part of our tender conditions. So all put together so we have about 17 societies right now out of the entire layout who has come forward for the cluster redevelopment, and I'm pretty sure that by the time we float the tender, we would have another 3-4 societies joining us as a part of the redevelopment process. This 22 societies, this 17 societies all put together is roughly about 22,000 square meter of development. So in a cluster redevelopment 33-9, all incentive and eligibility is linked with the size of the plot. The minimum size what is required is about 6,000 square meter. Then the next slab is 6,000 to 10,000. The second slab is 10,000 to 20,000. And the third slab is 20,000 to 50,000. And the fourth slab is above 50,000. So we fall into the second category of 20,000 to 50,000. Sorry, third category of 20,000 to 50,000. Where we get the most advantageous incentive and benefits which are permissible under regulation 33(9), which is a cluster regulation. The second criteria of the cluster redevelopment is the development has to abut a 18-meter road. By coming into the cluster, we are now abutting the 27-meter road on JP Road actually. And also on the Manish Market side, we are abutting the main road of 27 meters. So putting all together, we are meeting the requirements of the cluster, and now we are good to go. Once all these societies approve the tender, hopefully in next 3 to 4 weeks, we may see the tender being floated to the pre-approved list of developers, which me and Mr. Mota both are working upon. We don't want to get into floating the tender to the companies or the developers who doesn't fit into our eligibility criteria. So there has been a certain eligibility criteria which has been put into the tender document right now for the developer to be eligible for participation. So there is an EMD which we have kept for every society, which is 5 lakh rupees. 17 societies put together will the incoming developer has to pay an 85 lakh EMD. Then there is a performance guarantee. We are talking of 1500 square feet as a lien area for every society. So roughly about 26,000 square feet of performance guarantee. Then security deposit of about 2 crores per society. So again we are talking of almost 34 crore rupees as a
security deposit. At the same time, we are also asking for a 5 crore bank guarantee each society, which culminates into about 85 crore bank guarantee. This is from the project scale basically. The tender, once approved and finalized, will be shared with the pre-selected list of developers. Once that list is finalized through the committee, the same will be circulated to the members for their information. These are the developers whom we are approaching. So the eligibility criteria, what we have kept is minimum 8 to 10 years of experience into Mumbai region in terms of development and redevelopment. They would have completed at least 3 single projects of 300 flats or 3 projects totaling to 3 lakh square feet of built up area each basically. That's the technical side from a perspective that the developer should be at least this much of experience with this much of deliveries which have happened into MMR region basically. Then also we have kept an eligibility criteria. They should have done at least one plot of 10,000 square meters. They should have done one cluster development. So they understand the vision what we have, that should get translated to the developer in the sense that what is our vision and how we are looking the entire redevelopment to look at. We are looking at a bank solvency certificate of almost 1,000 crores. We are looking at a net worth of almost 1,000 crores for that developer to participate, and annual turnover of also 1,000 crores. These are the criteria which we have kept on the financial side now. 1,000 crore of net worth, 1,000 crore of solvency, and about minimum 1,000 crore of annual sales turnover for last 3 years basically. Of course, now coming to the benefits, we have kept the additional area. There will be a rent corpus. There will be an optional purchase of up to 150 square feet for residential units and 75 square feet for the commercial units. There is a cap. You can't get into buying more than whatever is your eligible area plus additional area you can buy from the developer at a pre-approved pricing, which will be less than a launch price. So it's kind of a pre-sales to the existing members basically. So we have kept that rate also as blank. The developer has to offer us a rate at what rate we have to buy this 150 square feet for the residential part of it. Hardship allowance, which is corpus. Then there is a rent which we have kept. Also we have asked for 10% escalation year on year on the rent side. There is a brokerage of 1 month we have asked. There is a shifting charges, both to and fro we have provided for. We are asking for 3% area variation clause because so sorry, I think मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी में इंग्लिश में चला गया तो नहीं ठीक है, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस. तो 3% एरिया वेरिएशन का क्लॉज रखा है अपन ने उसके अंदर, विच इज़ परमिसिबल अंडर द रेरा ऑल्सो, बिकॉज योर कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. कि अगर मैं आज किसी को 1000 स्क्वायर फीट देता हूँ तो आई विल बी एबल टू गिव एग्जैक्ट 1000 स्क्वायर फीट बिकॉज ऑफ द वॉल थिकनेस एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से वो 3% का वेरिएशन आता ही आता है. डेवलपर को ये सारे एक्सपेंसेस बियर करने जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, ऑन डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, PAAA, परफॉर्मेंस गारंटी, the cost of the consultants, all that has to be borne and paid by the incoming developer. ये अपन ने अपने टेंडर कंडीशन में लिखा है. पार्किंग के लिए we have asked for 1 minimum surface parking or whichever is higher as per the MCGM norms. अगर आज अपन MCGM norms के अंदर 60 square meter के नीचे it is 4:1. So that is why we are asking for 1 parking even if the flat is less than 60 square meters. 60 to 90 square meters is 1 as per the MCGM norms. तो वो आप 1 के अंदर एलिजिबल हो जाते हो. बट जैसे ही आप 90 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर जाते हो 2 पार्किंग प्रोवाइड करना है. तो अपन ने क्या प्रोवाइड किया है, मिनिमम 1 और विच एवर इज हायर एज पर दी MCGM नॉर्म्स. अगर नॉर्म्स के हिसाब से उसको 2 पार्किंग मिलनी चाहिए तो 2 विल बी द क्राइटेरिया एक्चुअली. एडिशनल पार्किंग नीड्स टू बी बॉट फ्रॉम द डेवलपर. वो प्राइसिंग क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे जब अपन DA डिस्कस करेंगे तब अपन नेगोशिएट करेंगे उसको.
ऑफ कोर्स अपन ने इसके अंदर काफ़ी सारी रिक्रिएशनल और अपन ने वेलनेस एमिनिटीज़ का भी प्रोविजन किया है। हेल्थ क्लब, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, AV रूम विच इज़ ऑडियो विजुअल थिएटर, ऑफ कोर्स द गैदरिंग, बिकॉज नाउ एक क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है तो यू नीड अ बेटर बैंक्वेट हॉल फॉर अस टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर। ऑल्सो आवर सोशल गैदरिंग्स, किसी मेंबर के फैमिली में शादी है, कोई गेट टुगेदर है, तो ही कैन हायर द बैंक्वेट हॉल and he can use it for that purpose basically. E-deck, which is amenities deck बोलते हैं अपन, because यहाँ पे अपने पास height restriction है, तो मेरे हिसाब से वो दो बेसमेंट में जाएगा ग्राउंड और 2 लेवल ऑफ पोडियम जाके बाकी हैबिटेबल फ्लोर्स यूज करेगा। तो जो पोडियम के ऊपर का जो लेवल आता है उसको E-deck बोलते हैं एक्चुअली। तो E-deck इज फुल ऑफ लैंडस्केप, उसके अंदर कोई वेहिकुलर मूवमेंट अपन E-deck पे अलाउ नहीं करते हैं, तो इट बिकम्स अ ओपन स्पेस फॉर द एंटायर डेवलपमेंट। देन जॉगिंग ट्रैक एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट सीटिंग कॉर्नर जिसको बोलते हैं, सो दे कैन हैव देयर इवनिंग कॉन्वर्सेशंस एंड गेट टुगेदर्स इन अ सेपरेट कॉर्नर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चिल्ड्रंस एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, STP, पावर बैकअप फॉर कॉमन एरियाज, दीज आर ऑल अपना solar lighting, solar panels on the rooftop. So all that will be provided into the design once we get into the design. But this is what जो हमने उनके टेंडर डॉक्यूमेंट में ये बेयर मिनिमम डाला है। आज का नॉर्म है 4% कवर्ड एमिनिटीज फ्री ऑफ FSI। तो आज इतने बड़े डेवलपमेंट में अगर अपन बिल्टअप एरिया देखें तो वी आर टॉकिंग ऑफ एटलीस्ट 30,000 to 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ अ कवर्ड एमिनिटी ओपन स्पेस, कवर्ड एमिनिटी स्पेस अदर देन ओपन स्पेस बेसिकली। तो कवर्ड एमिनिटी के अंदर आपका क्लब हाउस आ गया, आपका बैंक्वेट हॉल आ गया, आपका जिम आ गया। पूल इज नॉट पार्ट ऑफ द कवर्ड एमिनिटीज, तो पूल विल बी सेपरेट। ऐसे कैसे आपके रैकेट गेम्स, बैडमिंटन कह दो, स्क्वैश कोर्ट कह दो, if they are being provided in the open RG, they are not forming part of the covered space of that 4%. Then we have also specified अपने tender document में certain technical specifications which are non-negotiable. So वो अपन ने डेवलपर को क्लैरिटी के लिए डाला है कि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और बेयर मिनिमम, हमको इसके नीचे आपसे बात ही नहीं करनी। दैट इज द थॉट प्रोसेस। मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स होंगे, तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। फिर ऑफ कोर्स वी हैव आस्क्ड फॉर 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम विच इंक्लूड्स इंटरकॉम एंड विच इंक्लूड्स RFID एक्सेस टू द पार्किंग एज वेल एज सिक्योरिटी ऑन द मेन गेट। सो RFID एक्सेस होता है तो वो क्लब के लिए भी काम आ जाता है। मेंबर के पास अगर आपके पास RFID है तो यू कैन स्वाइप इट एंड यूज द क्लब फैसिलिटीज ऑल्सो। कुछ स्पेशल कंडीशंस टेंडर में डाली है विद रिस्पेक्ट टू द PR कार्ड म्यूटेशन। अपने 3 प्लॉट्स लीज है तो उसको डेवलपर से NOC लेके आनी है। एक बिल्डिंग नंबर 51 में कुछ 92 स्क्वायर मीटर्स का इंक्रोचमेंट है तो वो उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो उसको कंसिडर करेगा नहीं करेगा डेवलपमेंट में, इज हिज चॉइस, बिकॉज वो बड़ा एरिया नहीं है। 92 स्क्वायर मीटर से एक छोटा एरिया इतने बड़े डेवलपमेंट में जहाँ अपन 22,000 मीटर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बट एज अ प्रूडेंट PMCs वी हैव डिस्क्लोज्ड कि देयर इज एन एनक्रोचमेंट ऑफ एरिया ऑल्सो। इसके अंदर अपन ने एक कंडीशन बोल देता हूँ, स्पेशल कंडीशन, आई विल रीड दैट फॉर एवरीबडीज clarity. The developer shall ensure that all existing members of the each individual society are reaccommodated in the same corresponding sector, portion, geographical location where the current society is presently situated in the larger layout of Manish Nagar. ये आज काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में काफ़ी सारे मेंबर्स का कंसर्न है कि हमारा लोकेशन RG के सामने है, हमको वहीं चाहिए करके। दैट इज़ वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। सो मेंबर्स का जो भी इनपुट्स आया हमने उसको टेंडर में डालने की कोशिश की है। अब जब एक बार डेवलपर सेलेक्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बना के लेके आएगा और अपने को बताएगा कि भाई ये सोसाइटी के लोग यहाँ पे लोकेट हो रहे हैं, तो देन इफ़ इट इज़ नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट, तो अपन ये टेंडर कंडीशन को रेफर करके उसको गो बैक कर सकते हैं कि भाई दिस वाज वन ऑफ द टेंडर कंडीशन कि आपको जहाँ जिस सोसाइटी आज लोकेटेड है उसका रिहैब आपको वहीं प्रोवाइड करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट करना है तो दैट मेंबर्स हैव टू टेक अ कॉल
basis on the recommendation by the committee as well as by the PMCs. इसमें एक और कंडीशन डाली है, द डेवलपर शेल नॉट अलॉट एनी मेंबर टू अ डिफरेंट बिल्डिंग लोकेशन. वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि बाकी सबको तो यहाँ दे दिया, 2 जनों को जिसको एक्स्ट्रा एरिया दिया उसको भी वो ही इज गिविंग अ बेटर लोकेशन. वो डिस्क्रिमिनेशन का भी अपन ने एक कंसर्न आया था मेंबर्स के साथ जब इंटरैक्ट किया, तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इन द टेंडर कंडीशंस एक्चुअली. All the flats should have a minimum clear height of 10 feet. That is what we have provided for. ताकि क्या है, height restriction है, consumption of FSI is also important. अपन endeavor करेंगे 10.5 फुट मिले, but अगर अपने को 10 फीट clear मिलता है, तो I think it's a win-win situation for all of us. सर फ्लोर टू फ्लोर वो 10 फीट 6 इंचेस लिखा है, मैं इसके लिए 10 फीट क्लियर बोल रहा हूँ सर. स्लैब थिकनेस 4 में चला जाता है, नीचे जब आप फ्लोर करते हो ना 2 इंच का थिकनेस, उसमें आपका टाइल लेइंग पे चला जाता है सर. इसके लिए मैं 10 फीट क्लियर की बात कर रहा हूँ. एंड देन वी हैव ऑल्सो मेंशन कि कमर्शियल जहाँ पे है वहाँ पे 12 फीट का मिनिमम क्लियर हाइट होना चाहिए. ऑल द कमर्शियल यूनिट्स अपने को एप्लीकेबल नहीं है, बट काफ़ी सारे जो आगे की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स हैं, तो उनकी कमर्शियल यूनिट्स वापस रोड फेसिंग ही आना चाहिए करके अपन ने टेंडर कंडीशन डाला हुआ है. डेवलपर टू बियर ऑल टैक्सेस स्टैम्प ड्यूटीज वो मैं आपको बता चुका हूँ. कोई भी मेंबर वेकेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक पूरा आईओडी नहीं आता है. ये जो मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि अपने को फुल आईओडी इंसिस्ट करनी है, तो वो अपन ने एक टेंडर कंडीशन में डाला है कि पूरा आईओडी लेके आएगा वो. दैट इज हाउ वी हैव पुट इट अक्रॉस. क्योंकि अपना कंजम्पशन ऑफ एफएसआई इज ऑलरेडी हायर, क्योंकि ये जो आरजीए इसका एफएसआई डेवलपर ने, पुराने डेवलपर ने सब बिल्डिंग्स पे लोड किया हुआ है, तो अपना कंजम्पशन ऑलरेडी अपना हायर है. इसकी वजह से माड़ा शेयरिंग नहीं आता. नहीं तो क्लस्टर में अगर आपका कंजम्पशन कम होता तो आपका माड़ा शेयरिंग आता. तो कई सारे डेवलपमेंट्स में अपन क्या कहते हैं, अगर माड़ा शेयरिंग आ रहा है तो वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. वो कंडीशन अपन ने यहाँ पे भी डाला है. अपन ने एज अ पीएमसी वी हैव ऑलरेडी चेक, कोई माड़ा आता नहीं है, बट अगर डेवलपर के हिसाब से आता है तो वो बाहर देना है उसको, वो यहाँ नहीं दे सकता है. वो 22,000 मीटर में नहीं प्रोवाइड कर सकता है, उसको बाहर लेके उसको यहाँ क्लब करना है. क्लबिंग प्रोविजन अलाउड है, और वो एफएसआई यहाँ लाके यहाँ लोड करनी है उसको. और जो जनरल कंडीशन अपन ने लिखी टेंडर के अंदर, उसमें एक कंडीशन ये लिखी है कि सोसाइटीज के पास उनका ओनरशिप राइट जब तक रीडेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता वो सोसाइटीज के पास ही रहने वाला है. ओनली डेवलपमेंट राइट डेवलपर के पास जा रहा है. वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द लैंड राइट्स टू द डेवलपर. बेसिकली जो इनकमिंग डेवलपर होगा वो डेवलपर अपनी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं कर सकता है एक बार आने के बाद. आज मैंने XYZ को सेलेक्ट कर दिया है ऑलरेडी, और वो प्रमोटर को अपन ने और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के आज अपन ने सिलेक्शन किया है. उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को लेके वो अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं कर सकता है. वो शेयर होल्डिंग 51% के नीचे नहीं जा सकती है. सो इट इज स्पेसिफिक टू द कंपनी, इट इज स्पेसिफिक टू द प्रमोटर. नहीं तो मालूम पड़ा कि डेवलपर ने अपने से रीडेवलपमेंट राइट ले लिया और कल किसी और को असाइन कर दिया. सो वी आर नॉट अलाउिंग हिम टू मेक दैट हैपन एक्चुअली. Members will be free to sell at any stage of redevelopment after the PAAA is executed, subject to NOC from the developer basically. Because developer को मालूम होना चाहिए PAAA होने के बाद अगर कोई मेंबर ने वो फ्लैट बेचा है तो वापस खरीदा किसने, बिकॉज पोजेशन के टाइम के जो बेनिफिट्स हैं वो परचेजर को जाएंगे, वो एग्जिस्टिंग मेंबर को नहीं जाएंगे करके. इसके लिए वो डेवलपर का NOC लगेगा अपने. 17 सोसाइटी और एक कट ऑफ डेट डिसाइड करने के बाद अगर अपने पास और कोई सोसाइटीज लेआउट से आती है तो दिस विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ऑल द सोसाइटीज. उनको क्लस्टर में कैसे लेना और क्यों लेना चाहिए करके. सो एक वो कंडीशन भी अपन ने डाली है ताकि देर इज अ प्रेशर ऑन अदर सोसाइटीज जो आज क्लस्टर में नहीं है वो अपने साथ क्लस्टर में आ जाए. और अगर एक बार अपना सिलेक्शन हो गया और प्रोसेस कंप्लीट होने आ गया इन टर्म्स ऑफ डेवलपर,
तो देन अगर उसके बाद अगर वो सोसाइटीज उस डेवलपर के पास जाती तो बिना अपनी एनओसी के डेवलपर वो सोसाइटीज को एंटरटेन नहीं कर पाएगा। बाकी इंडेमनिटी वगैरह के सारे प्रोविजंस हैं वो डेवलपमेंट अग्रीमेंट में आएंगे। He has to provide us an indemnity with respect to the construction obligations, with respect to compliance, with respect to timely payment of rent, corpus, adhering to the possession timelines, etc. etc. वो तो लंबा चौड़ा डीए बनता है, उसके अंदर सबके obligations और इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, टर्मिनेशन के क्लॉज वगैरह सब आते हैं उसके अंदर। तो ये मोटा मोटी पूरा टेंडर है सर, जो मैं आपको रीड करके बताया हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो मोर देन हैप्पी टू आंसर, बट आई हैव ट्राइड टू कवर विद दिस नोट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पॉइंट्स which members should know basically. The layout and building plans ensure that the residential units allotted to the existing members are not provided with a direct view of the existing cemetery to the maximum extent feasible and subject to statutory approvals and planning constraints. तो यहाँ boundaries change होने चाहिए क्या? नहीं सर, अपन ने ये कोशिश की कि सेमेट्री फेसिंग कोई यूनिट्स आए ही नहीं। हाँ, बट वो जो लैंग्वेज है विद अ डायरेक्ट of the existing cemetery to the maximum extent. सर इसमें क्या सर ऐसा नहीं होगा ना सर, अभी तो आज आई कांट टाई अप हिज हैंड्स, उसको लेआउट लाने दीजिए सर, आपके पास है अप्रूवल करना नहीं अप्रूवल करना। जस्ट इसके लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल इसके लिए बोला कि भाई मेंबर्स को सेमेट्री फेसिंग यूनिट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। नहीं सर, उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आज अपन की बिल्डिंग्स, अपन एक तरफ बोलते हैं जहाँ मेरी बिल्डिंग है वहीं मेरी बिल्डिंग आनी चाहिए, आज आपके कुछ यूनिट्स उधर है नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन टुडे विद द डेवलपर। अपना प्राइम कंसर्न क्या है कि जो मेरी लोकेशन है वो लोकेशन पे मेरे को मेरा फ्लैट मिलना चाहिए। आज अगर सिमेट्री फेसिंग यूनिट्स आते हैं तो वी कैन ऑलवेज रिजेक्ट, मेंबर नहीं लेगा। आपके टेंडर डॉक्यूमेंट आपका बेस डॉक्यूमेंट बनता है। माइक दीजिए सर, माइक दीजिए। आपका टेंडर डॉक्यूमेंट इज द बेस डॉक्यूमेंट। द बिल्डर कैन ऑल्सो कम बैक एंड टेल कि आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा है मैक्सिमम एक्सटेंट फीजिबल एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स। वी आर इन एयरप्लेन जोन, हम लोग एयरप्लेन जोन में हैं, हम 14 माला 20 माला जितना जा सकते हैं। वो बोलेगा अप्रूवल्स नहीं आ रहा है, AAI नहीं सर, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। जब व्हेन वी एंगेज विद द सेलेक्टेड डेवलपर एज अ PMC, जो भी लेआउट बना के वो लेके आएगा, दैट हैज टू बी फर्स्ट गेटिंग अप्रूव्ड बाय अस। By us मतलब every as a PMC first, and then PMC is going to present it to all the respective societies. बिना अप्रूवल के लेआउट जाएगा नहीं आगे इसके अंदर। और दूसरा जब होता है सर, जब आप सेलेक्ट करोगे टॉप 3 डेवलपर होंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट डिजाइन प्रेजेंट करेगा। कॉन्सेप्ट डिजाइन के अंदर भी आपको वो लोकेशन में मालूम पड़ेगा कि वो, क्योंकि आपका क्लस्टर में एक AOS देना पड़ता है, एक RG देना पड़ता है, वो अगर वो पीछे देता है तो अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू टाई अप हिज हैंड्स टुडे, rather there should be a flexibility in design in the sense कि अपने को बेस्ट डिजाइन एक्सेप्ट करनी है। बाद में अपना जो कंडीशन है कि मेंबर वो फ्लैट नहीं लेगा, वो तो आप कभी भी रख सकते हो उसको। नहीं, बट बिकॉज आप एक डेवलपर को डिसाइड करने के बाद डेवलपर डिसाइड नहीं करेगा। 3 डेवलपर, टॉप 3 डेवलपर आपने बोला, फिर इट कैन बी अ लॉट ऑफ कंटेंशन। सो मैं उस स्टेज के ऊपर उनको बोलूंगा कि आपने ये जो पीछे बिल्डिंग दिखाई है वहाँ पे मेरे मेंबर नहीं आएंगे, आपको सेल डालना पड़ेगा। Then he has to take a conscious call. ठीक है, that is very very good. That will also mean closing the east face of the society, which is the sunlight side of society. Sir, I am not getting into those directions right now. Let us understand, sir. Sir, ये बहुत premature discussion है. I am just trying to put the basic conditions right now. क्योंकि layout, देखिए सर, अपन redevelopment किसके लिए कर रहे हैं? To get maximum benefits, not in terms of commercial or area. It has multiple things which will come as a part of redevelopment. So मैं कोई चीज पे compromise नहीं करना चाहता. I want to give a free hand to the developer to design what he intends to design. And जब वो concept design में अपने को present कर रहा है top 3 developer में, as a PMC I am supposed to highlight कि अगर तुम member area पीछे दे रहे हो तो वो हमको acceptable नहीं है. सर उसको रिवाइज करके अपन ने 1000 करोड़ कर दिया। बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपने तीनों चीजें बताई थी, 1000 करोड़ है, राइट? Yes sir. थैंक यू। नहीं वो क्या है सर, देखिए ये सब चीजें इवॉल्व हो रही है सर। क्या है, आप अपन को जो अपन लिस्ट ऑफ डेवलपर्स चाहते हैं और जो अपने को विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लोकल डेवलपर्स
we don't want to approach them. We want to approach only who will qualify into these criteria. तो थोड़ा सा stringent अगर अपन करते जाएंगे तो अपन better quality of developers को लेके आ सकते हैं. Intent है कि listed company आनी चाहिए. आज अपने पास 15-20 developers हैं जो listed हैं and who can form part of our entire development process. That is the thought process. सो आपने एक पॉइंट बोला प्री अप्रूव डेवलपर्स है हमारे पास. वो मैं सर वी आर डेलिब्रेटिंग इंटरनली. तो वो जब लिस्ट फाइनल होगा कि ये टेंडर अपन किस किस को दे रहे हैं करके, उसको देने से पहले वो तो आप एक ओपन टेंडर नहीं करेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू? अभी तक इंटेंट ये है कि ओपन टेंडर नहीं करना चाहिए. दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस टुडे. जैसे जैसे आपके साथ मीटिंग हो रही है वैसे सब सोसाइटीज के साथ पैरेलली टेंडर अप्रूवल का प्रोसेस चालू है. तो लेट अस हैव द फीडबैक फ्रॉम ऑल द सोसाइटीज एंड देन एज अ पीएमसी वी विल टेक अ कॉल. इतना ज़्यादा रहता है तो ओपन टेंडर रखने में लिस्टेड बिल्डर ही आएगा ना. नहीं, इंटेंट वही बोल रहा हूँ आपको. चाहे आप ओपन करो चाहे क्लोज करो या प्री अप्रूव्ड लिस्ट से करो, अपना इंटेंट क्या है? वी शुड गेट द बेस्ट ऑफ द डेवलपर्स. And we can suggest any names if you come up with some pre-approved matching your conditions later on. 99% we will not miss on those reputed developers which will qualify under this criteria. आज 85 करोड़ का बैंक गारंटी देना मतलब you have to have that much of margin money to pay to the bank to get the bank guarantee issued. सर आपने अभी कहा कि 2 है, करेक्ट? 2-4 नहीं सर, 15-20 डेवलपर. 15-20 है, तो उसमें से आप किसी का नाम शेयर करना चाहोगे? सर आज बहुत प्री मैच्योर है, वो लिस्ट एक बार फाइनल हो जाने दीजिए, मैं पूरी लिस्ट ही शेयर कर दूंगा सर. ओके ओके. और जो बेनिफिट्स रहेगा वो परचेसर को जाएगा. P-AAA के बाद के जो बेनिफिट्स है जैसे रेंट हो गया, आपका कॉर्पस ऑन पोजेशन हो गया, वो सब आपके परचेजर को मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा. आपका राइट खत्म हो जाएगा जिस दिन आप P-AAA करने के बाद आपने अग्रीमेंट पर सेल कर दिया उसको. तो P-AAA के बाद में मैं फ्लैट सेल अगर मुझे करना है डेवलपर को तो नहीं कर सकती. सॉरी, P-AAA साइन करने के बाद अगर मैं सेल करना चाहती तो हूँ आपको बिल्डर का एनओसी लगेगा. ओके, वो बिल्डर का एनओसी मैंने लिया, फिर मैं अगर सेल कर रही हूँ तो आपने बोला था कि जो बाकी बेनिफिट्स है वो परचेसर को मिलेगा. एब्सोल्युटली. वो क्या बेनिफिट्स? वही बता रहा हूँ ना आपको. आगे का रेंट, आपका रेंट और कॉर्पस जो, हाँ कॉर्पस का जाएगा और कुछ जाएगा. और बस यही है आपके बेनिफिट्स में. क्या है आपका? शिफ्टिंग है, ब्रोकरेज है. ब्रोकरेज आपको पहले मिल जाएगा P-AAA के साथ, आपका पार्ट कॉर्पस मिल जाएगा, आपका रेंट मिल जाएगा टू अ सर्टेन टेन्योर. तो बाकी के जो बेनिफिट्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाले उसकी बात कर रहा हूँ. मुझे वही जानना था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बेनिफिट. यही बोला ना, रेंट आपका, कॉर्पस फर्क, रेंट और कॉर्पस. कॉर्पस में फर्क. क्लस्टर में 33.9 के अंदर टोटल FSI is 4 प्लस फंजिबल ऑफ 35% वी गेट इनटू 5.4 FSI. राइट. तो बाकी मनीष नगर में सब चर्चा हो रही है काफ़ी जगह पे कि हम लोग 100% क्यों नहीं मांग सकते. सर मांगने को कुछ भी मांग सकते, प्रोजेक्ट विजिबल होना चाहिए सर, नहीं तो डेवलपर ही नहीं आएगा. और आप फिर बेंचमार्क डाल सकते हो सर. अपर लिमिट की कोई कैप नहीं होती. वो डेवलपर को जब तक फिजिबल है वो बढ़ाता जाएगा. तो हमें मांग भी नहीं करनी चाहिए. सॉरी, हमें मांग भी नहीं करनी चाहिए सर. आप फिर आप मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 डेवलपर्स है, अगर अपने को 100% डालना है तो हो सकता है 3 या 5 ही इंटरेस्ट दिखाएंगे आपको, बाकी 10 पहले ही निकल जाएंगे. प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं प्रॉब्लम है. क्या है? अगर 10 में से 5 निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या सर है? वो 5 भी आएंगे कि नहीं आएंगे, श्योरिटी कौन लेगा उस चीज की? फिर द एंटायर प्रोसेस विल गो फॉर अ टॉस. तो फिर बेंचमार्क क्या रखा है? बेंचमार्क रख सकते हैं. मैं अभी आई एम नॉट द ओनली पर्सन टू डिसाइड, राइट? वी कैन ऑलवेज डिबेट एंड डेलिब्रेट, बट मेरे हिसाब से अपने को कोई बेंचमार्क भी नहीं रखना चाहिए. वो अगर एलिमिनेट हो जाएगा, अगर लेट से किसी ने 50 किया और किसी ने 80 किया है, 50 वाला वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आपका. और फिर अंदर में ही आपका तो बड़ा क्लस्टर है ये. अब छोटा क्लस्टर जहाँ पे है, यहाँ पे अभी 7 बंगला में हो रहा है, तो वहाँ पे 100% दे रहा है, तो वो कैसे दे रहे हैं? सर मैं अभी वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं आई एम नॉट इन अ सिचुएशन राइट नाउ टू. आप बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, नहीं दे सकते हैं. मैंने ऐसा नहीं बोला है सर. आप प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड माय वर्ड. मैंने आपको बोला इट इज डेवलपर्स प्रेरोगेटिव. उसको 100 देना है, 115 देना है, 80 देना है, 60 देना है, 70 देना है. मैं ये बोल रहा मेरा हूँ. भी अधिकार है ना कि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 100% सर आपका चाहिए. अधिकार, जब आप डेवलपर सेलेक्ट करो, अगर आपको लगता है ऑफर ठीक नहीं है आप रिजेक्ट कर दो ना सर. क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार वहाँ है. सर आप हमारे PMC है,
आपको इसीलिए अपॉइंट किया है कि आप हमारा भला सोचो। सर मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं आपका भला सोचने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देयर हैज टू बी अ हेल्दी कंपटीशन वेयर डेवलपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे एक सोसाइटी है दूधसागर करके, गोरेगांव ईस्ट के अंदर ओबेरॉय गार्डन सिटी को लग के, उनके पीएमसी ने 50, 60, 65% का फिजिबिलिटी दिया सोसाइटी को, बट जब डेवलपर आए प्रोसेस के अंदर सबने 60, 65%, 70% ऑफर किया। फाइनल क्लोजर 115 में हुआ है सर। मैं नहीं होता हूँ रोकने वाला, वो डेवलपर है जो बढ़ाता जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपका राइट है, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ उसके लिए। सॉरी, ऑफ कोर्स ना बॉस, दैट इज व्हाई आई एम देयर ना। नहीं, इनके भी हो रहा है ना सर, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है हो रहा है तो बहुत कुछ तो जाना है, तो मुझे बहुत कुछ देना नहीं इसीलिए है। बोल रहा हूँ सर, आई डोंट वांट टू टॉक सर। मैं सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट एक्सेस टू दैट प्रोजेक्ट। वो कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, मेरे को अगर उसका डिटेल मिलेगा, आप 1-on-1 मेरे साथ बैठ जाइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। मेरे को कोई आप लेके आएंगे ना, आप लोग लेके आएंगे। हाँ लेके आइए ना सर, कभी भी लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग राइट नाउ। क्या होता है कि सर एक दूसरी सोसाइटी के अंदर जब हम ऐसा ही डिस्कस कर रहे थे, मेंबर ने उसका एडवांटेज लेके वॉइस नोट बना के पूरे ग्रुप में भेज दिया कि पीएमसी ने 110% कंफर्म किया है, जबकि देयर इज नो कमिटमेंट। Not even minimum like what we can say. सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल आपके 15 डेवलपर पार्टिसिपेट करते हैं, आपको इवेंचुअली तो आपको सबको शॉर्टलिस्ट करते करते इवेंचुअल 3 पे तो जाएंगे ना आप। कैसे एलिमिनेट करोगे आप? एलिमिनेट करने के 3-4 तरीके हैं सर। एक तो ऑफर, एक आप उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, एक उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड। ये 4 चीजें होती है जिसके ऊपर आप डेवलपर को सेलेक्ट करते हो सर। खाली कमर्शियल ऑफर पे तो आप जाओगे नहीं। मैं जिस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जिसको सेलेक्ट किया, ही वाज H4 और H1, H2, H3 के अंदर ओबेरॉय, लोडा और रुनवाल थे, फिर भी वो बाहर हो गए क्योंकि वो मेंबर का डिसीजन था कि हमको H4 को देने का है, भले ही हमको 5% कम मिले। वो राइट जो सर बोल रहे हैं वो राइट मेंबर का है, मेरा राइट नहीं है। मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि ये मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि एज पर ऑफर ये H1 है, एज पर ऑफर ये H2 है, ये H3, H4 है। बाकी वोटिंग आपके पास है, सिलेक्शन आपके पास है। Thanks. ये तो हम लोग भी चाहते हैं कि आपका टेंडर ओपन हो, आपका टेंडरिंग जो होने वाला है, हमारे सोसाइटी का हम बोलते हैं कि हमारा टेंडर ओपन होना चाहिए। टेंडर ओपन ही होगा ना सर, पब्लिश होना चाहिए, पेपर में आना चाहिए सर। जिसका 1000 करोड़ का नेटवर्क है आप ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका 1000 करोड़ सर, जिसका है वो देगा ना, हम उसके बारे में क्यों सोचें? सर आपको लगता है कि जो 15-20 नाम दूंगा उसके अलावा कोई ऐसा डेवलपर होगा जो 1000 करोड़ का सेल करता हो, 1000 करोड़ का नेटवर्क हो? एक तरफ आप यू आर फ्री टू, एक मिनट सर, लेट मी फिनिश। You are free to suggest us the name. We will send. I will ask the developer to buy the tender from us. I don't have a problem. आप दीजिए ना, नेम रिकमेंडेशन दीजिए, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि जो मैंने लिस्ट दिया वो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है भाई कि मैं अपना बिल्डर का ये करूँगा। मैं आपके बिल्डर मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको जनरली आंसर दे रहा हूँ सर। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि टेंडर ओपन नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना है, ऐसा करके, और एक तरफ ऐसा भी आप बोल रहे हैं कि बाबा इतना परसेंटेज कोई देता नहीं है। मतलब दोनों बात अपनी तरफ से बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे, मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपका 22,000 मीटर का प्रोजेक्ट करने के लिए एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और एक डेवलपर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो 22,000 मीटर का कैपेबिलिटी नहीं है तो कोई भी अगर 100% भी दे दे, 120% भी दे दे, वो अपने लिए कोई मायने नहीं रखता। एक मिनट सर, लेट मी फिनिश नाउ। वो अपने लिए मायने नहीं रखता है। अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करने की उसकी कैपेबिलिटी है तो वो 100 दे, 120 दे, वो मेंबर्स को क्या फर्क पड़ने वाला है सर? मेंबर्स को तो ये देखना है कि आज मेरे को अगर 80%, 90%, 60%, 70%, 100% जो मिलता है, वेदर द आई एम गेटिंग इनटू माय न्यू हाउस इन 3.5-4 years और नॉट, whether that developer has a capability, whether that developer has a track record। आज मैं 85 करोड़ की बैंक गारंटी मांग रहा हूँ, 32 करोड़ का डिपॉजिट मांग रहा हूँ। कौन डेवलपर है जो उसके 34 करोड़ का मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा हूँ? कौन डेवलपर है जो पैसा टेबल पे पहले रखने को तैयार है? That shows the intent of the developer, whether he is serious or he is just trying to play with us in that open tender। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्या था कि हर एक सोसाइटी अपना अपना टेंडर पहले फाइनल करेगी, फिर सबका मिलके बाद में एक ओपन टेंडर आएगा। मैं करेक्ट हूँ इस चीज़? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। जब आप ओके फाइन,
आप जब क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जाते हो तो टेंडर एक ही बनता है। हाँ, तो वो आप open सब लेकिन- वो टेंडर आपको सबको भेज चुका हूँ मैं। हाँ। वो टेंडर में अगर कोई चीज मिस हो गई है हमसे या कोई आपके सजेशंस है तो आप दीजिए, वी विल इंक्लूड इट। नहीं मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो ओपन टेंडर का डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। मैम अभी डिसीजन मेरा अकेले का तो डिसीजन नहीं है। ओपन टेंडर हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैंने अभी बोला भी है। अपना रेजोल्यूशन पास कर लो एजीएम में और हो जाएगा। इट हैज टू, मैं अभी यही बोला सर, दोनों पीएमसी और 17 सोसाइटीज का जॉइंट डिसीजन होने वाला है हाँ। कि अपने को ओपन करना है कि नहीं करना, अपने को नहीं करना है, अपने को अगर क्लोज करना है तो ये 15-20 डेवलपर है इनके साथ करना है। मैं वो डिसीजन, मीटिंग और होगा सर वो आपको इंफॉर्मेशन आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। उसका मीटिंग नहीं चाहिए अपने को। हाँ। इट्स अ डिस्क्लोजर, इट्स अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज टू कम टू द मेंबर्स। टेंडर यही रहने वाला है, आप ओपन में जाओगे तो भी यही रहने वाला है, आप क्लोज में जाओगे तो भी यही रहने वाला है। ओके थैंक यू। The first criteria is the financial condition of the. So it is one of the criteria, it is not the first criteria. So what are the other criteria you can give priority to, like project completion, like मैं डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड बोला ना, मैं डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड में कितने प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है उनका, कितने प्रोजेक्ट्स में लीगल केसेस हैं उनका। जब अपन ये सब चीजें ऑलरेडी टेंडर में अपन उनसे मांगते हैं एंड वो सबका एनालिसिस पीएमसी का जॉब है टू एनालाइज ऑल दैट एंड देन वी कम बैक टू द मेंबर्स कि भैया देखो फाइनेंशियल ये हायर है लेकिन इसके साथ ये चैलेंजेस है करके, देन इट इज अ कॉल ऑफ द present the case. मैम दैट इज कम से कम 50 पेज का पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनेगा। इट इज नॉट जस्ट 2 पेजर के इसका ये ऑफर है, ये कॉर्पस है, ये रेंट है, आप सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं होने वाला है। पहले 15 से 10 करेंगे, 10 से 5 करेंगे, 5 से 3 करेंगे। देयर इज अ प्रोसेस व्हिच नीड्स टू फॉलो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। We have not yet decided कि 15 का 10, 10 का 5, but this is the way how we will do it. So there are 3-4 rounds of negotiations which are going to happen with the developer. आज अपन ने ये terms and condition डाले, कोई developer कोई terms and condition acceptable नहीं है while filling the tender, उसने subjective दे दिया, conditional दे दिया, और वो अपन को लगता है कि वो top 5 में आ गया, top 7 में आ गया, then there is a negotiation कि भाई आपने ऐसा लिख के दिया, हमारा टेंडर ऐसे जैसे मैंने अभी उनको बताया, तो डेवलपर either has to accept to a tender condition or we have to accept it. So the maximum matching points will be considered. Absolutely. अब ऐसा नहीं है कि जिसका हाईएस्ट ऑफर आ गया वो अपना एक डेवलपर, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। And because there are so many buildings, obviously everybody will have some say. सो वो तो जब अपन 17 सोसाइटी का कॉमन एसजीएम होगा, जब फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, जब वोटिंग करने जाएंगे ना मैम अपन, इट विल नॉट बी सोसाइटी वाइज, it will be all 17 societies, 800 odd members voting at the same time after the presentations of top 3 developers have happened. So वो तो ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। नहीं मैं कह रहा हूँ तो दिस इज ऑल इवॉल्विंग प्रोसेस होता है मैम। एज यू गो फॉरवर्ड देयर आर सर्टेन एडिशंस, देयर आर सर्टेन डिलीशंस। अपन हो सकता है जो आज टेंडर में कंडीशन है, आगे जाके अपन वी मे गिव अप द टेंडर कंडीशन। वी मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग इज नॉट ओनली अस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल सोसाइटीज मेंबर्स बेसिकली। So I have a question, since it is a cluster redevelopment, correct? 17 societies are involved in this. Considering this is one, अच्छा, ये एक लाइन है, वो एक लाइन है, then there's एक और उधर है. तो अगर फेज वाइज होगा इवैक्यूएशन सबका या कैसे होगा? ये सब प्लानिंग में आएगा सर। जब Planning आपका में लेआउट आता है ना, Okay. आपका जब कंसेप्ट डिजाइन आने के बाद जब लेआउट आएगा और जब आपके पास प्लान्स आप फाइनल करोगे तो आपका रिहैब पहले किधर है, वो किस Correct. फेज में लेने वाला है, हाँ, ये। वो कंस्ट्रक्शन कैसे करने वाला है, वो सेल के कौन से बिल्डिंग लॉन्च करने वाला है फर्स्ट फेज के अंदर, Okay. ऑल दैट इज अ कॉन्वर्सेशन विच विल हैपन विद द सेलेक्टेड डेवलपर बिफोर वी गेट इनटू अ डीए और बिफोर वी गेट इनटू एन अप्रूवल ऑफ द फाइनल प्लान। ओके, सो फाइनल प्लान इज इन प्लेस। तो द बिल्डर हमको बताएगा कि ये बिल्डिंग ये महीने खाली होगी, फिर ये विल वो स्टार्ट। पहले ही आ जाएगा ना आपके अच्छा पास। ठीक है। नाउ जो कमर्शियल्स डिस्कस होंगे उनके साथ, फॉर एग्जांपल अभी ईयर एंड आ गया, नेक्स्ट ईयर आ जाता है, देयर इज एन इन्फ्लेशन कॉस्ट टू एवरीथिंग। तो अगर वो कॉर्पस में हमारे ऐड होगा, हमारे रेंटल्स में ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं साइन कर दिया वो कर दिया। जो आज आपका एक बात बता देता हूँ, 33(9) में अप्रूवल्स टेक्स 1 ईयर,
because it goes to HPC. Okay. HPC is an additional step which is required under 33(9). तो आज आप डेवलपर सेलेक्ट करते हो, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आपने 1 अगस्त को डेवलपर सेलेक्ट किया, Okay. उसके बाद प्रोसेस क्या होगा आपका, उसका वो डेवलपर आपका ड्यू डिलीजेंस करेगा, सोसाइटी के टाइटल का, मेंबर्स का, सबका टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस करेगा। अपन जो डिस्क्लोज कर रहे हैं टेंडर में, वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, दैट विल बी डन बाय हिज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स। दैट प्रोसेस नॉर्मली टेक 60 to 90 days। उस प्रोसेस के अंदर वो प्लान फाइनलाइज करके आपको प्लान प्रेजेंट करेगा, आपके इनपुट्स और सजेशन जाएंगे, आपका डीए का ड्राफ्ट आएगा, डीए के सजेशंस ऑब्जेक्शंस जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने चला जाता है आपका। उसके बाद आपका 6 महीने बाद अप्रूवल का प्रोसेस शुरू होगा, विच विल टेक अनदर 6 months। सो इफेक्टिवली यू हैव मिनिमम 12 to 15 months, विच वी कैन नॉट आस्क फॉर एस्केलेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 15 months कि ये तो 15 महीने लग गए, अब आप हमको बढ़ा के दो। नहीं, बट 15 महीने एज अ क्लस्टर यू विल कंसिडर ना, बट अगर वो टाइम पे आफ्टर डीए साइन एंड एवरीथिंग बोलेगा कि मेरे को ये बिल्डिंग पहले लेनी है, फिर ये लाइन लेनी है, और हमें और 6-8 महीना पुश कर सर आपका ऐसा नहीं होगा ना, आपने 10% एस्केलेशन सुना ही है ईयर ऑन ईयर। हाँ। तो आपका अगर वो फेजिंग के अंदर जाता है, वो ग्रीन फील्ड नहीं करता है, हाँ। और वो मल्टीपल फेजिंग में जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके रेंटल्स ऑफ द 4th, 5th, 6th ईयर आल्सो विल बी गेट एस्केलेटेड फॉर दोस बिल्डिंग्स। तो पर स्क्वायर फीट कॉर्पस और रेंट जो भी है वो इंक्रीज होगा नहीं कॉर्पस होगा? वो ही रहेगा, रेंट आपका एस्केलेशन अपन ने मांगा है। कॉर्पस कैसे कॉर्पस आपका 50% तो आपको पहले ही मिल जाता है वेकेशन No, but- से पहले। ईयर ऑन ईयर तो वो भी चेंज होना चाहिए ना नहीं होगा। दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट सीन इन माय डेवलपमेंट करियर सो फार। दैट इज एज पर मार्केट करंट मार्केट। तो आप निगोशिएट कर लेना, आपको एरिया ज़्यादा चाहिए, कॉर्पस ज़्यादा चाहिए, यू डिसाइड व्हेन यू हैव द डेवलपर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये सब नेगोशिएशन टेक्टिक्स है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर टुडे। क्या आपको कॉर्पस एग्जांपल देता हूँ आपको कि किसी ने 1500 दिया, किसी ने 2500 दिया। हाँ 1500 जिसने दिया उसने आपको 80% दिया, 2500 जिसने दिया उसको आपने 60% ही दिया। कॉल तो मेंबर्स का है ना इवेंचुअली, कि उनको 60% और 2500 चाहिए या 80% या 1500 चाहिए। वी कैन पुट असाइन अ वैल्यू टू इट कि भाई ऑफर टर्म्स में ये H1, H2, H3, H4 है, बट अल्टीमेटली द मेंबर्स हैव टू डिसाइड। the offer that will be binding will be equal for all 17 buildings or it will be different? There cannot be discrimination. Same at the same That level is and what the same. that is why the cluster ना, cluster में you can't have a discrimination. And flats का जैसे appreciation like square feet जैसे standardization अभी हुआ है। सर ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये अपन एरिया विच इज साइंड ऑफ बाय द मेंबर्स इन द कमिटी गोइंग टू द डेवलपर फॉर कैलकुलेटिंग द एडिशनल एरिया। स्टैंडर्डाइजेशन होगा जब आपका कंसेप्ट डिजाइन के बाद जब फाइनल प्लान बनने आएगा, आपको एडिशनल एरिया चाहिए, Additional area. आपको एरिया कम करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को 800 फीट नहीं चाहिए, मेरे को 700 ही चाहिए। सो ऑल दैट एक्सरसाइज विल हैपन ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनल प्लान। उसके हिसाब से फिर आपका ग्रुपिंग बनेगा कि 700 के इतने, 900 के इतने, 1100 के इतने, 1300 के इतने, 1600 के इतने। Okay, and that's how they will be placed. ऑफ कोर्स सेम लोकेशन सेम बिल्डिंग। सर आएगा ना, विद इन द सेम लोकेशन ही कैन गिव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो ना। इसके लिए बड़ा लेआउट है तो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है सर, दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सर बहुत मुश्किल है सर, हाइट रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले एनी डेवलपर, अगर मैं भी आज डेवलपर होता तो ये सोचता। सर अभी करंट हाइट इज 57 मीटर, इन अपील यू कैन गेट अप टू 70 मीटर्स, दैट इज व्हाट आवर स्टडी सेज। एक्चुअल क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल क्या मिलेगा वो तो वहाँ पे दिल्ली में अपील जाने से ही पता चलेगा। उस टाइम के नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग। अडानी हैज गॉट 90 odd meters हाइट, बट यू कैन नॉट टेक दैट इज अ बेंचमार्क टुडे कि उसको 90 मिला है तो मेरे को 90 मिलेगा। सो जब अडानी को 90 मिला तो आपके एविएशन नॉर्म्स अलग थे, आज आपके एविएशन नॉर्म्स अलग है, आज के एविएशन नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट है। सर अभी इन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मार्केट में ये थियरी चल रहा है, फ्लोट हो रहा है कि फर्स्ट फेज में 14 से 19 या 20 बिल्डिंगें जाएंगी। सर ये सब है। सुनिए ना, हाँ सुनिए सर। ना। तो क्या ऐसा अगर होता है तो हम लोग जो है जो 37 से लेके 51 तक
तो वो हम लोग यहीं पर रहेंगे या हम लोगों को भी वो उसी वक्त खाली करा देंगे? सर आपने कहीं टेंडर में ऐसा पढ़ा है क्या कि पहले फेज 1 वो होगा या ये चल रही है सर ये बात तो चल दिस रही इज ऑल फेक रिपोर्ट ना, सर दिस इज ऑल आई वुड नॉट वांट टू से एज अ गॉसिप, हाँ। दिस कुड बी ऑल गॉसिप्स। अच्छा, दिस इज ऑल गॉसिप। सर आप डॉक्यूमेंट आज आपके सामने है, जो अपन डेवलपर से बात करने वाले हैं विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टेंडर में नहीं तो आता ना कि पहले आप वो करिए। सर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, नहीं नहीं विद यू सर, आई एम जस्ट टेलिंग के जैसे वो मेरा एक स्टेटमेंट को पूरा ऑडियो बना के डाला, दैट वाज अ फेक ओनली ना सर। somebody tried to extract that advantage and put it on the group, ओके। because somebody सर देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट किसका क्या है मेरे को उसमें जाना ही नहीं है सर। आपका इंटरेस्ट हमारे साथ है, वो तो है ही है ना सर। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं उसी के तो आगे बोल रहा हूँ। मैं क्यों अभी सर मेरे को बोल रहे हैं 100% कमिट करो, कमिटमेंट का कोई क्वेश्चन तब होगा क्योंकि अल्टीमेटली मेंबर्स को कॉल देना कि जो 100% दे रहा है या 80% दे रहा है या 70% दे रहा है उसको सेलेक्ट करना है या जिसको भी सेलेक्ट करना है। आई कैन ओनली बी अ रिकमेंडेशन गाय, अल्टीमेटली कॉल तो 17 सोसाइटी के मेंबर्स को लेना है सर। नहीं सर, वो आपको कमिटमेंट नहीं बोले थे, ऐसा मांग कर सकते हैं। सर मांगने के लिए वो कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। समझा दिया आपने। वो कब आएगा जब आपके टॉप 5 डेवलपर्स आ गए और आपके पास एक बेंचमार्क है कि 5 में से किसका हाईएस्ट है। लेट्स से वी आर इंक्लाइन टू H3, एग्जांपल दे रहा हूँ। वी कैन आस्क H3 का आप H1 को मैच करो करके। दिस इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन द लास्ट। मैं आज रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि मेरे को मिनिमम इतना करना है, इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। आपके बहुत सारे जो कमर्शियल प्राइसिंग्स, रेंट हो गया, कॉर्पस हो गया, आपने सब वो कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट पे डाला हुआ है ना। यहाँ तक कि 3% ऊपर नीचे हो गया डिलीवरी पे, वो भी करना आपने पड़ता है सर। नहीं 1 मिनट, वो भी आपने ब्लैंक रखा हुआ है क्योंकि अभी वो कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट पे आएगा। तो ये कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट कब आने वाला है और ये हमारे पास आने वाला है क्या नहीं अप्रूवल के लिए? मैं सर्कुलेट करवा देता हूँ। यस, बिकॉज ये टेंडर, ये पार्ट टेक्निकल टेंडर हो गया। सबसे मेन कंसर्न सबका क्या है, आपने रेंट क्या प्रपोज किया हुआ है, आपने कॉर्पस क्या प्रपोज, भिजवा देता हूँ मैं, सर्कुलेट कर दूंगा। बिकॉज क्या है ना कि दिस इज हाफ अप्रूवल, ये हाफ अप्रूवल फिर मिल रहा है, फिर खाली टेंडर अप्रूवल हो रहा है। दिस इज ओनली टेक्निकल टेंडर। ठीक है, मैं एक बार लेट मी टॉक टू माय कलीग PNC आल्सो बिकॉज दिस हैज टू कम फॉर ऑल। I just can't decide for 35, 36, So 37. we are aligned on one thing कि आज रेजोल्यूशन सिर्फ टेक्निकल टेंडर डॉक्यूमेंट पे होगा। सर आप वापस SGPM करने जाओगे तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी मैं फिर देन वी आर गेटिंग इनटू मल्टीपल राउंड्स अगेन कमर्शियल बिड सर। डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नाउ वी आर अग्रीइंग टू एवरीथिंग। सर आप एक चीज समझिए, जो डिसाइड होगा सबके लिए होने वाला है। कैसे हो सकता है? नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ सर, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कमर्शियल बिड ऑफर नहीं है तो क्या यू वांट टू गेट आउट ऑफ द। नहीं तो आपने टेंडर में क्या लिखा है, कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट आएगा ना। कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट हमारे साथ आया है, हमारे पास नहीं आया हुआ है ना, तो हम ये अप्रूव सिर्फ टेक्निकल टर्म्स पे करेंगे। ब्लैंक से आपके रेंट एंड कॉर्पस की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेरे लिए डेवलपमेंट का। आई विल टेल यू क्या चल रहा है। हाँ, आप माइक पे बात करिए। So what is happening is we have 17 societies. Currently the assumption is best. What we've noticed is you give a minimum. Minimum के ऊपर आप bidding कर सकते हो. क्या minimum? The second, whatever minimum. There's one example. Second option is you let the developer decide what he feels is the best market practice to get potential higher. Minimum क्या हो रहा है? The pattern we are noticing जब हम minimum देते हैं, especially rent का, the developer stays in that range. It doesn't give us higher numbers. So we are suggesting because our cluster is larger, एक blank रख सकते हैं. Let the developer come back with it. We've This said is a lot additional. of flexibility on- नहीं, I am not agreeing to this. Okay, and I will just- redevelopment program क्यों चल रहा है? For many reasons. Building is old. We want bigger flats. किस चीज़ के लिए? कॉर्पस पे है, रेंट पे है, FSI पे है, यहाँ तक के 3% वेरिएशन है, वो भी नहीं इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें कमर्शियल चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पास आना चाहिए पहले अप्रूवल के लिए। ये टेंडर अगर आज अप्रूव हो रहा है तो ओनली टेक्निकल टर्म्स में हो रहा है, कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट के लिए वापस SGM हो। दो ही चीज होंगे जो कमर्शियल टर्म्स में ऐड होने वाले हैं। आपका मिनिमम रेंट ऐड होगा जो हम 120 रुपीज बोल रहे हैं। अभी हम लोग एक क्यों नहीं, इट इज नॉट बिन साइंड ऑफ एन इंटायर क्लस्टर। हाँ, तो ये हमारे को बताओ ना, पहले क्लस्टर के पास जाने के लिए ना हमको मालूम होगा पड़ेगा ना। सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज 120 रुपीज शुड बी द मिनिमम, उसके नीचे अलाउ नहीं करेंगे। 1500 रुपए कॉर्पस इज व्हाट इज 1500 रुपए, आप क्या बात कर रहे हैं? 1500 नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप वो पहले हमारे पास वही टेंडर लाइए ना, ये क्यों ला रहे हैं फिर? ये कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है लाने का?
approving only the technical tender document today, not the commercial bid document. This is very clear. Sorry, I'm raising my voice. This should have been circulated and you तो should डबल गेम हो रहा है हमारे साथ में फिर you should have given it to them. Sir, currently the commercial bid document is without rent and corpus. What I'm saying here, I need that. I need that. या कोई लेके आएगा आप ऐसे नहीं कर सकते. bid document ready है sir. It just doesn't have values. Bid document is very important क्योंकि आपने सब चीज डेफर कर दिया उस पे और आप डेफर करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट हमसे अप्रूव कराएंगे, हमारे उससे क्वेरीज होंगे, हम चेंज करवाएंगे. आप सारी सोसाइटी से करवाओ. I just want to clarify. The bid document is ready. It is only missing values for minimum. Values are very important for minimum. इम्पोर्टेंट ना, विदाउट वैल्यूज आप अगर सर्कुलेट कर रहे हो तो बिल्डर का वेट करोगे आने का, तो बिल्डर फिर आप बताओगे, आप 14 नंबर में 65% मिनिमम बोला, 1200 रुपए कॉर्पस मिनिमम बोला, रेंट 120% स्क्वायर फुट मिनिमम बोला. वो मिनिमम उनको बोला, हमको कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं लिख के दिया ये? किसी को कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट नंबर नहीं आपने है. उधर फिर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मीटिंग में लिखा हुआ है, बोला हुआ है. देखिए हम भी कोऑर्डिनेशन में है सब 17 के. हाँ ठीक है. और दूसरा चीज ये जो आज हम टेंडर अप्रूव कर रहे हैं, मैं वो पॉइंट पे पहले ही मैं वो पॉइंट इज नॉन नेगोशिएबल कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट. दूसरा चीज हम जो बात कर रहे हैं, आज ये टेंडर हमने अप्रूव कराया टेक्निकल टर्म्स पे, बट इसके बाद कोई भी बिल्डिंग चेंज करेगा कुछ भी, क्योंकि बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, 20 नंबर में दूसरा लॉयर है, उसने बहुत सारे चीजें पुश बैक दे दी है तरुण मोटा. वो चेंज होगा, वो हमारे पास वापस अप्रूवल के लिए आएगा. इट इज नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. आई विल नॉट अग्री ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. वी आर नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, वी आर द ओनर्स. ठीक है. कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट didn't come to us. We are not approving a commercial bid document today. I just want to clarify. Sir is saying commercial bid document आया sir. It doesn't have values for rent and corpus. हमारे पास नहीं आए सर कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट. मैं वापस सोसाइटी के साथ सर्कुलेट कर देता हूँ. कमर्शियल कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट में वैल्यूज ब्लैंक नहीं रखेंगे. हमको कोई मिनिमम वैल्यू आना है और हम उस पर डिबेट. आपने जैसे रेफरेंस किया 14 to 17, 14 to 20, उनको भी ब्लैंक ही गया, जो उनको पीएमसी ने एक्सपेक्टेशन सेट की है कि 120 रुपए मिनिमम रेंट. मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने आपका टेंडर डॉक्यूमेंट में मेरा क्वेरी राइटिंग में लिखा गया है 10 दिन पहले कि कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट चाहिए. कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट दोनों बार भेजा है सर. हमारे पास नहीं आया. आई विल हैव इट रीसर्कुलेटेड अगेन. और वो कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट वैल्यूज आप नहीं ब्लैंक रख सकते. आप ब्लैंक नहीं रख सकते वो वाले. ये लीजिए आपका पॉइंट. नहीं, मेरा ये कहना है कि हम लोग आप लोग जो टेंडरिंग बना रहे हैं वो हमारे लिए बना रहे हैं कि आप अपने मन से बना रहे हैं? आपके लिए बना रहे हैं सर. जो मैंने बोला, दो स्ट्रैटेजी हो सकती है. आप एक मिनिमम अमाउंट रखो या आप एक तो ओपन. आप हमारे सुन रहे क्यों नहीं फिर? आई एम लिसनिंग टू यू. नहीं नहीं, जब हमारा कहना ऐसा है तो आपको वैसा ही करना है. आप अपने मन से क्यों कर रहे हो? I will have to go back, check with the other PMC, check at what other societies are approved. अगर अप्रूवल हो रहा है तो सिर्फ टेक्निकल टेंडर डॉक्यूमेंट हो रहा है. हेलो, टेक्निकल मैं कुछ बोलूँ? मुझे ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई पेपर मिसिंग है, तो वो फेथ का क्वेश्चन हो रहा है. कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी. मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. बिड डॉक्यूमेंट, कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग बेस्ड वे, वो जो डॉक्यूमेंट है आपको पेपर अभी अगर जेरोक्स प्रिंट करके जेरोक्स अभी सर्कुलेट कर दो. चले मैं अभी डाल दूँगी. क्वेश्चन इसका नहीं है कि आपने दिया नहीं, ये कर रहे वो करे, वो क्या एक डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो वो सबको ऐसे हो गया है कि यार ऐसे कैसे. दोनों बार कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट हैज बीन शेयर्ड. माय ओनली मेंबर्स के पास देखो मेंबर के पास आ जाएगा. आपने उनको नहीं दिया, उन्होंने हमको सब दिया हुआ है. हाँ, ये वैल्यूज के साथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है. आप माइक पे बोलिए ना, समझ आएगा माइक. So I'll give you a little more background. Because there are 17 societies, everybody is thinking commercially very differently. Someone wants 200, someone wants XY. So we're suggesting the best option is to have it blank with a certain market practice set in place that we know what should be minimum rent and corpus. Correct. Idea as of today is जो हमें चल रहा है मार्केट में is 120 rupees rent and 1500 corpus as setting as minimum. उसके जो bids आएंगी it will all escalate. 1500 इज वेरी सर. 1500 तो मैं 10 साल पहले भी है ना 1500 चल रहा था. मेफेयर ने दिया हुआ है, हम निकाले डॉक्यूमेंट और दिए आपको. It is not about sir minimum मैं बोल रहा आप हूँ. मिनिमम कम रखोगे तो कैसे मिलेगा? इसीलिए when you keep bidding it escalates. नॉट मार्केट. आप मार्केट बोल रहे हो, मार्केट बोलो. आप नीचे रखो मार्केट के 10%, 20% नीचे रखो.
आप 10 साल पहले का रेट रख रहे हो 1500। हम how you want to think about it is you want to think about the commercial offer as a ठीक है, चलो combination. आप एक बार कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट भेज तो दो सब वैल्यूज के भेज साथ, देता हूँ। वो सेपरेट अप्रूवल नहीं होगा। नहीं सी द ट्रिक इज, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एज सर आल्सो मेंशन, यू कैन हैव अ डेवलपर गिव यू एन ऑफर, आपको दे सकते हैं 80% एंड 1500 और वो कॉर्पस। डेवलपर इज गोइंग ऑन टेंडर, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन कमर्शियल बिड No. डॉक्यूमेंट। टेंडर बाद में आ रहा है, ये दोनों साथ में है, साथ में जा रहे हैं। बेस क्या कंसीडर करेगा? आपने 1500 मांगा, मैंने आपको 2000 दिया, दैट इज द वे इट गोज ऑन। फिर नेगोशिएशन, आपने 1500 मांगा, मैंने आपको 100% दिया, 2800 दिया। Correct. नेगोशिएशन योर, हम लोग अपना नेगोशिएशन लूज कर रहे हैं 1500 रख के। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, आप जैसे आई गिव एन एग्जांपल फॉर नेगोशिएशन ऑल्सो, जो होता है हाँ। एक मेंबर डेवलपर ने आपको 80% दिया और 2000 रुपए कॉर्पस दिया, किसी ने आपको 100 दिया, 1500 कॉर्पस दिया। योर नेगोशिएशन इज वेरी, यू कैन पुश आइदर और कि कॉर्पस इंक्रीज करो या एडिशनल एरिया इंक्रीज These करो। all developers know each other. Please be Correct, very correct, mindful. correct, very well. You are doing closed. ठीक है, आप प्री अप्रूव ला रहे हो। डेवलपर और मैं प्रेम जी को जानता हूँ, मैं ओमकार को जानता हूँ, मैं नितिन को जानता हूँ। मैं डिस्कस करके भी आ सकता हूँ कि मैं नहीं देंगे भाई, 1500 रखा था मिनिमम थ्रेशोल्ड। सी भाई सर, आप समझ नहीं रहे हो। नहीं, वही बोल रहा हूँ सर, कुछ भी नंबर आप कैप करोगे दैट लॉजिक विल अप्लाई देयर आल्सो। मैंने आपने जैसे सबसे करेक्ट रेट बोला है, मिनिमम रखोगे आप मिनिमम रखो ना, लेकिन 1500 तो मिनिमम बनता ही नहीं है। और मैं ये चीज पे डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट दोगे, हम फिर उस पर अप्रूव करेंगे नेक्स्ट मीटिंग। माय ओनली फिर मैं आई वांट टू रिपीट, जैसे ये एक सोसाइटी वी हैव 16 अदर सोसाइटीज, द सेम लॉजिक वेयर डिसाइडिंग अ मिनिमम फॉर कमर्शियल इज वेरी डिफिकल्ट। कोई अग्री नहीं करेगा कि 3000 होना चाहिए, 4000 होना चाहिए। सो द बेस्ट ऑप्शन डिसाइडेड वाज लीव इट ब्लैंक, लेट द डेवलपर कम बैक, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एक राउंड ऑफ बिडिंग नहीं होने वाला। सर आप ब्लैंक कुछ मत रखो, क्योंकि डिसीजन कैसे लेंगे? ऑफर आएगा ना मैम, नहीं मत रखो, वो हवा में बातें नहीं चाहिए, ऑल इन राइटिंग चाहिए। सेकेंडली, सबका मिलके जो डिसीजन होने वाला है उसके लिए तो अलग सोसाइटी बनेगा ना पूरा, जो डीए बनेगा उसका कंबाइंड एक ये सोसाइटी। लेटर मैम, ये है ना? ऑफर की बात है सिर्फ तो बाकी सोसाइटीज का आप छोड़ दो कि वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपना क्लियर होना चाहिए तो राइटिंग में। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि द टेंडर विल कीप गेटिंग डिलेड बिकॉज़ यू आर फाइटिंग ऑन द कमर्शियल। नहीं होगा, हम कंडीशंस पुटअप कर रहे हैं ना। नो सी, जैसे हम लोग 1000 करोड़ का पुटअप कर रहे हैं, ये भी पुटअप कर रहे हैं। मीटिंग के लिए आ रहे, दैट इज व्हाट शोइंग आवर कंसेप्ट। वही मैं बोल रहा हूँ सर, एवरी सोसाइटी हैज अ सर्टेन डिफरेंट बेंचमार्क इन देयर हेड फॉर मिनिमम। आपने अगर 3000 रुपए बोल दिया फॉर पर्पस, agreed, but You should tell them that if this society is keeping this benchmark, so you also have to come on this benchmark. there are societies that will go higher than your benchmark, which is नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। बिल्डर को बोलो 17 सोसाइटी इसके नीचे नहीं मानेगी। आप बोल ही नहीं रहे सर, आप पीएमसी सबके लिए हो। आपने क्या बोला लास्ट में? आप गुड फ्रेंड्स हो ना तरुण मोटा के साथ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अमित मेहता के साथ भी गुड फ्रेंड्स हो। Correct, correct. लीगल लॉयर बैठो सामने। Sir, और मैं वही बोल रहा हूँ। एक मिनट। वन थिंग इज वेरी क्लियर शुभम, आज हम टेक्निकल टेंडर डॉक्यूमेंट अगर आज अप्रूव करते हैं तो हम कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट नहीं अप्रूव करते। हम वापस एसडीएम में आएंगे और हम उस पर भी डेलिब्रेशन करेंगे। हाँ। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन के बिना नहीं करेंगे। Correct. मैं एंड वैल्यूज के साथ आएगा, कुछ भी ब्लैंक नहीं आएगा। परफेक्ट। मैं बस आई जस्ट वांट टू हियर ऑल ऑफ योर थॉट्स सर। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर ऑल ऑफ योर थॉट्स कंप्लीट कर लेगा। दूसरा चीज, आप मार्केट से 10% नीचे रखो, 20% रखो, 30% रखो, लेकिन 10 साल पीछे का कॉर्पस मत रखो। आप मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाऊंगा सब जगह से कि वो 10 साल पहले का 1500 कॉर्पस मिल रहा था सब जगह, और वो भी तभी क्या क्लस्टर डेवलपमेंट था ही नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। तो आप प्लीज सोचिए, जाइए वापस। बेनिफिट ऑफ डाउट आपको भी दिया, क्योंकि आप भी क्लस्टर में काम कर रहे हो, तरुण मोटा के साथ काम कर रहे हो, अमित मेहता के साथ काम कर रहे हो, है ना। 20 नंबर में दूसरे लॉयर के साथ काम कर रहे हो, वो वाला बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। आप प्लीज जाइए, कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट आज नहीं अप्रूव हो रहा है, वो अप्रूव होने के लिए एसडीएम आएगी, और वो आप प्लीज 1500 रुपये हमको मालूम पड़ चुका है, 1200 रुपये 120 स्क्वायर फुट पर रेंट, और 65% हमको मालूम था 14 नंबर से ये बन रहा है। आप वहाँ जाके तरुण मोटा ने बोला है, ठीक है, तो आप वो छोड़ दीजिए। आप कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट डालिए, सबको सेम पेज में लाइए, और वो बिड डॉक्यूमेंट हम अप्रूव करेंगे। हमारा कमिटमेंट ये है कि हम 7-7 दिन में भी मीटिंग आ रहे हैं। हमारे ना 10 दिन पहले आए थे, उसके पहले हम 10 दिन पहले भी आए थे। हम रेडी हैं, वी आर कमिटेड। यू कॉल अस ऑन अ वीकेंड, हम लोग इधर होंगे आपके साथ। वी आर फुल्ली कोऑपरेटिव। दूसरा चीज़, आज हम अगर टेंडर डॉक्यूमेंट कुछ भी अप्रूव कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग चेंज करेगा, आप हमको आके प्लीज वो अप्रूवल कराएंगे, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग चेंज करेगा, वापस ये अप्रूवल पेज पे आएगा, क्योंकि क्या है कि पहले बीच में जो टेंडर डॉक्यूमेंट आया उसमें वेरी गुड पॉइंट्स नहीं थे, जो आपने पहले इंक्लूड बाद में इंक्लूड किए करेक्शन के हिसाब से, वेरी गुड, है ना।
फिर आपने वो 1000 से 700 किया टर्नओवर, फिर 700 से वापस 1000 कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो ये आप प्लीज़ अप्रूव कराएंगे। आई लीव इट टू एवरीवन। मेरे कुछ क्वेरीज आपको मैंने राइटिंग में दिए थे, मैं उस पर बात करूंगा इसके बाद। अगर मुझे 10 मिनट हो गया आप मुझे क्लैरिफाई कर देना, बट ये वाला पार्ट मैं बाकी मेरे साइड से मैं क्लियर कर रहा हूँ। I have a flat in Maroon. Nathan had given an offer to us in 2013, 2100 rupees square feet. 43% रूम में दिया था, वो पुरानी बात है, बट आज की डेट में 1500 इज टू लेस इवन आई रेट है। 120-130 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेंट अधिक, बट ऑफर्स इज लाइक टू लेस। अभी कमर्शियल में डाल ही रहे हो ना, तो आप थोड़ा ज़्यादा मार्केट से 10-15% कम डाल के डाल दो, जब एजीज है 30%। मेरा सवाल आपके मैनेजमेंट कमेटी के साथ में है सर। ये जो भी अभी टेंडर डॉक्यूमेंट बना है, तो अपने जो KMC है इन्होंने आके आपसे कुछ कंसल्ट किया था, सजेशन आपने दिया उनको? हम लोग ने इतना क्लियर कट किया है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज होगी, PMC विल क्लियर इट। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेंगे PMC करेंगे। वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग। अच्छा, ना तो कमर्शियल ना टेक्निकल, जो भी होगा PMC जो करेंगे उनके आधार पे ही करेंगे। एंड दैट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी। हम लोग का इसमें कोई भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि PMC जो भी करेंगे तो हमारा भी कुछ सजेशन है, वो उसमें मेंशन मजा आएगा ना सर, तो वो उसमें आना चाहिए, बराबर है? तो आज जो भी आप मिनट्स बनाएंगे उसमें हम लोग का इसका भी जो ऑब्जेक्शन है या जो भी बात क्वेश्चंस है वो सब इसमें मेंशन होने चाहिए, बराबर है? हाँ, और मैं PMC को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अभी मार्केट में जो चल रहा है ना, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट कोई छोटी बात रह नहीं गई और किसी को मालूम नहीं, ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं। जितने लोग अभी रहते हैं कि ये मुंबई के अंदर, पूरे मुंबई में अभी डेवलपमेंट का चालू है काम, अपने मनीष नगर छोड़ के पूरे अंधेरे में चालू है। तो सब चीज़ सबको मालूम है कि कॉर्पस क्या मिल रहा है, रेंट क्या मिल रहा है, सब चीज़ क्या मिल रही है, ये सबको मालूम है। तो मैं सबका नहीं बोलूँगा, मैं अपनी बात रखता हूँ कि जो भी है आप हमारे साइड से जो बेस्ट है वो रखो। आप हर टाइम क्या कर रहे हैं, अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि अभी मैं इनको इसलिए पूछा कि आप लोगों ने कुछ सजेस्ट किया है क्या, तो नहीं, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है और हमारे ऊपर डिपेंड है। जो लोग बोलेंगे वैसा ये लोग करेंगे, बराबर है? तो इसके अंदर ऐसा है ना सर कि अभी आप मैं बोला ओपन आप टेंडर करेंगे तो नहीं करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे कि ये मेरे पास 20 लोग हैं, इसमें से आप कोई चूज करो, बराबर है? अगर अभी आप बोल रहे हैं 20 कितना अपना लेआउट कितना है, 22,000 फुट का है। अरे 50,000 फुट का काम होता है, वो लोग भी टेंडर डेट में ओपन करते हैं, पेपर में देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं दे सकते हम लोग? उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना प्रॉब्लम काय आहे? बरोबर ना? 100 फूट का 1000 फूटचं काम देतात टेंडर मध्ये, देतात ना, पब्लिश करतात रे. तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे? पैसे आमचे जाणार आहे, बरोबर ना? पैसा हमारा जाएगा ना, आपकी जेब से तो जा नहीं रहा है. तो आपको हमारा डिमांड देना चाहिए, तो आप दो ना. ये सजेशन डालो, सोसाइटीज अप्रूव करते हैं कि नहीं, ठीक है? दूसरा चीज आई जस्ट आस्क यू वो क्वेरीज जो मैंने राइटिंग में दिया था, मैंने आपको बोला कि आपने जनरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डाला हुआ है, वेरी गुड पॉइंट, फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है? बट आर्बिट्रेशन में ना आपने जो डे टू डे डिस्प्यूट्स आ सकता है ना, रेंट टाइम पे नहीं आ रहा, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, एरिया का डिस्प्यूट है, इसका भी पॉइंट आप आर्बिट्रेशन में डाल दो, विच विल बी देयर. क्योंकि अभी आर्बिट्रेशन इज ओनली ऑन टर्मिनेशन फॉर डिफॉल्ट. Are we discussing DA or are we discussing tender? टेंडर डॉक्यूमेंट. टेंडर में तो ये चीजें आएगी नहीं. आपका ultimately this tender will be superseded by development agreement. So all these points will be covered under development agreement, which is a legal registered document. So ये जो आपका event of defaults, उसका consequences, cure period और उसका rectification और eventual termination. टर्मिनेशन होगा तभी आपका आर्बिट्रेशन आता है, नहीं तो अगर आपको क्योर पीरियड दे दिया और उसने क्योर कर दिया है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू आर्बिट्रेशन. अगर आप मान लो XYZ कंपनी आती है, उसकी आप कॉर्पोरेट गारंटी लेते हो,
आप उसकी कॉर्पोरेट गारंटी लेते हो अदर देन योर बैंक गारंटी. So you have to first enforce the bank guarantee, you have to first enforce the lien area before you get into termination. तो ये सब प्रोसेस जो है ना वो आपका डेवलपमेंट अग्रीमेंट में आएगा, टेंडर में नहीं आएगा. एंड टेंडर विल गेट सुपरसीडेड बाय योर डेवलपमेंट अग्रीमेंट. सो थैंक यू. आपने एक पॉइंट डाला है कि हम मैंडेटरी कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर साइनिंग डेवलपमेंट अग्रीमेंट विच इज़ योर DA. आपने प्रॉपर्टी कार्ड डाला है. सर प्रॉपर्टी कार्ड इज़ अ गुड स्टेप बट इट इज़ अ पार्शियल स्टेप. मैं सबके लिए बोलता हूँ क्योंकि शायद सबको नहीं मालूम होगा, या तो आप हमको करेक्ट करें. जब तक कन्वेंस डीड नहीं आता ना सबका बिल्डिंग का, तब तक DA नहीं साइन होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंस आपका प्रॉपर्टी कार्ड पे भी चढ़ता है कन्वेंस डीड. आई अंडरस्टैंड दैट. बट कन्वेंस डीड जब तक रजिस्ट्रार से क्लियर होकर टाइटल नहीं आता, हमारे पास बहुत सारे लैंड्स पड़े हुए हैं जो अभी तक दूसरे बिल्डर के पास पहले इंसेप्शन से पड़े हुए हैं. कल को उसने आके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया, बिकॉज यार अभी तो सबको मालूम है कि हम उसको लेंगे भी नहीं, है ना. तो आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए कि DA साइन होगा जब कन्वेंस डीड होगा, क्योंकि हम भी अपना कन्वेंस डीड तो आपको करवा देंगे. वी आर कमिटेड टू इट, एवरीवन इज कमिटेड टू इट. बट ये प्रॉपर्टी कार्ड इज अ पार्शियल स्टेप. इट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स जो बिल्डर भी क्रिएट करेगा. सर ये 11 एकड़ की जमीन है, वो अजमेरा भी प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, तो क्या करेंगे. सो मेरे को एक बात बताइए, प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम कब चढ़ेगा? कन्वेंस होगा जब ही चढ़ेगा ना. तो कन्वेंस होगा तो कन्वेंस के बगैर PR कार्ड पे नाम कैसे चढ़ेगा? अगर प्रॉपर्टी कार्ड पे अगर नहीं भी चढ़ा हुआ. नहीं, मैं आपका पहले मेरे को आपकी लेट मी करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग. PR कार्ड इज द लास्ट स्टेप. म्यूटेशन ऑफ PR कार्ड इज द लास्ट स्टेप. ओके. उसके पहले आपका कन्वेंस होगा, अगर असाइनमेंट लीज है तो डीड ऑफ असाइनमेंट होगा. हाँ. उसके बगैर PR कार्ड पे नाम नहीं चढ़ता. तो फिर हम डीन कन्वेंस के बाद ही, दैट इज मीन So you let me clarify. Why developer will spend the money if you are not entering into a development agreement? उसको आप डेवलपमेंट अग्रीमेंट दोगे, डेवलपमेंट अग्रीमेंट में 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी आप उसको टाइम दोगे फॉर डूइंग द कन्वेंस, फॉर डूइंग द PR कार्ड म्यूटेशन. उसके बाद ही वो पैसा स्पेंड करेगा, अदरवाइज व्हाई ही शुड स्पेंड द मनी. एक मिनट, लेट मी फिनिश, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं तो डे इन डे आउट कर रहा हूँ. एंड उसके बाद आप उसको 4 महीने 6 महीने के टाइम दोगे. आपके अप्रूवल्स किसके नाम पे आने वाले हैं? सोसाइटी के नाम पे आएंगे. सोसाइटी के नाम पे कब आएंगे? जब आपका PR कार्ड पे नाम होगा. तो ऑब्वियसली द डेवलपर कैन नॉट गेट दी अप्रूवल्स अनलेस एंड अंटिल ही हैज कंप्लीटेड दिस प्रोसेस. सो ये जो अपने पास मैंने अभी आपको जो टाइम फ्रेम समझाया है 6 महीने का, दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू डू आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर, आफ्टर एंटरिंग इनटू अ डेवलपमेंट अग्रीमेंट, व्हाट ऑल पेपर डेफिशिएंसीज. मैं खाली कन्विंस में नहीं जाना चाहता. व्हाट ऑल पेपर डेफिशिएंसीज आपके सो कॉल्ड पुराने ओनर, सो कॉल्ड पुराने लेसर्स, अगर उसको लगता है डेवलपर को उसकी टेक्निकल और लीगल टीम बोलती है उसका NOC लगेगा, इट इज हिज राइट टू गो एंड गेट दैट NOC. आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. आई हैव स्पेसिफाइड कि तेरे को 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ये काम करने का, और नहीं तो IOD तू 12 महीने में लेके आएगा. नहीं लेके आएगा तो तेरा एग्रीमेंट टर्मिनेटेड है. वी हैव नॉट वेकेटेड द साइट आफ्टर वेकेशन. कब होगा? जब आपके पास IOD आएगा. IOD इज योर फर्स्ट अप्रूवल. IOD कब आएगा? जब आपके सारे पेपर कंप्लायंसेस पूरे हो गए. सो दिस इज द वे हाउ वी लुक एट इट. वी डोंट लुक इट टू पीसमील के पहले कन्विंस होगा कि पहले PR कार्ड होगा. वी हैव टू गिव एवरी राइट टू द डेवलपर, enter into a development agreement and do the exercise whatever is required for him to get the first approval and our vacation. Otherwise we are not vacating. If he is not completing within that 12 months of time, we are supposed to terminate the agreement, which will form part in the development agreement. And sorry, because I am a lawyer, that's why I am able to give you all this. But I put it in writing only earlier. Sorry? I put it in writing only earlier for you to know it. नहीं, मेरे को तो I was told that answers have already been addressed in the new draft which has been circulated. Otherwise, अगर आप circulate नहीं भी किया था, मेरे को सवाल पता है तो I will be able to answer you, because we are doing multiple redevelopments right now and these questions come day in day out for us. And most of the places we are not only PMCs, we are project management advisors, where we provide all solutions under one roof. I just had a question. Whenever you're going to decide upon the corpus and the rent,
Of course, it will be different for commercial and residential. So that kind of those two bids will be. No, it is specified right now also residential and commercial. Rent separate, corpus separate. Since I believe Vishal has mentioned right now कि विशाल ने अभी यही बात करी कि वो कमर्शियल बिड डॉक्यूमेंट में जब तक वैल्यूज ऐड नहीं होगी या जब तक वो स्पेसिफाई नहीं होता उस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते ठीक है ना सर, वेल रिस्पेक्टेड, दे नोटेड डाउन सर. ठीक है वो आएगा उसमें बट वो फ्लोट और उस पे अगेन देयर विल बी अ मीटिंग अगेन फॉर दिस एंड अगेन एन एचडीएफ फॉर मतलब द मेंबर्स आर अवेयर कि क्या डाला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि खाली पेपर You will do everything that is necessary. हाँ द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड आप लोग के बात किए बिना कुछ भी नहीं होगा. परफेक्ट 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 सर ये सिंस अपना ये क्लस्टर डेवलपमेंट है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आता है वो पर्टिकुलर प्लॉट का आएगा या टोटल Cluster का आएगा, सर. क्लस्टर का तो ऑलरेडी वो आपके पास है. सर मैं और तरुण मोटा दोनों उस पर काम कर रहे हैं सर. बिकॉज कुछ सोसाइटीज अभी थोड़े टाइम पहले ही क्लोज हुई है तो उनका सर्वे और वेरिफिकेशन ऑफ एरिया चालू है उनका. तो वो क्लोज होने के बाद ये वीक के अंदर या अर्ली नेक्स्ट वीक there should be a combined feasibility which will be prepared. That will be shared to all of us. That call we have to take. We will take in consultation with all the committees. I can't commit you right now. Any further questions? किसी को कुछ पूछना है? Last meeting we were saying you want to follow. 79A is not Compulsory. compulsory. It's हाँ. mandatory. हाई कोर्ट जजमेंट इज देयर. आपका कोऑपरेटिव कोर्ट का अपीलेट का भी जजमेंट है. कोई जरूरी नहीं है. But is there any harm in following that? If you do it, fine. If you don't do it, सर no आप problem. एक But I एक don't want the सेकंड. transparency कुछ नहीं ज़्यादा सर, है. एक सेकंड. आप एक सेकंड सर. वेयर आर वी लैकिंग इन अ 79A प्रोसेस? नहीं प्रॉब्लम क्या होता मैं है एक मिनट आपको बताता हूँ. 79A गाइडलाइन क्या बोलती है सर? यू शुड हैव अ PMC. Yes. यू शुड हैव अ लीगल. PMC मतलब एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ सर. जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स. तो ये चैप्टर बार बार नहीं आए तो सबके लिए अच्छा है. 79A डायरेक्टिव में क्या बोलता है सर? PMC होना चाहिए विच यू हैव, लॉयर होना चाहिए विच यू हैव, टेंडर होना चाहिए या 3 ऑफर होना चाहिए विच यू विल गेट इवेंचुअली. फिर आपका डेवलपर सिलेक्शन जनरल बॉडी में होना चाहिए, वो जनरल बॉडी में होगा. So where are we lacking in terms of? When we are following all the rules and regulations as We per are not terming it as a 79A per se. No, that's what I'm saying. But is we don't want to. we took PMC उसका कुछ टेंडरिंग हुआ था. हुआ था ना सर. Every process has been followed by them. लॉयर का भी हुआ था, टेंडरिंग का भी हुआ. सर एक सेकेंड. Every process has been followed by them. मैं 6 महीने एंगेज था सर आपकी कमिटी के साथ. Before they took me on board. I totally agree with you. We had the same issue in our old society also, which is going self-development in Marol. Sir, self-development is a different But issue. listen, अच्छा 79A does not. Self-development में there are separate directives which has been issued by the state government. No, but we are following the 79A over there also. सर आप करिए ना, कोई मना नहीं है. But is there? I'm asking you, is there any harm? नहीं, there is no harm. मैं तो आपको बोल रहा हूँ अपन कहाँ 79A कंप्लाई नहीं कर रहे. जस्ट बोलने से 79A फॉलो करो इज नॉट द इशू. इशू इज द एसेंस ऑफ 79A. मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको सर. आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ. 79A का एसेंस जो मैंने आपको बता दिया. वी आर फॉलोइंग all the essence in true spirit of whatever is But in stupid. future, if we don't follow the process, We so are- we can go to the registrar. But if you're not following, we can't go. Sir, we are ऐसा- bond with you. सर ऐसा कुछ नहीं है. आपके साथ में जाना ही पड़ेगा. सर आप 79A का जो नया नोटिफिकेशन आया वो भी आप पढ़ लीजिए सर. The deputy registrar has a very limited role of 79A. He has to just give you a letter that he was present when the developer was selected. He doesn't authorize any selection of developer today. I don't know. I think No, I'm telling you, cash, sir. some cash is there. You're not I'm following telling you 79A. because of I can't force you. Please agree to it. because of the vested interest of these so-called officers, this 79A has been put into the minds of the committee and the members.
अदरवाइज देयर इज नथिंग। नहीं तो हाईकोर्ट ऑर्डर क्यों आता है, उसके बाद क्यों गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि 79A के अंदर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैज टू जस्ट रिकॉर्ड हिज प्रेजेंस। ही इज नॉट एन अथॉरिटी टू गिव एन ऑर्डर, ही इज नॉट एन अथॉरिटी टू कंफर्म द सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर। Complaint is a society. As a society member, he is supposed to take a complaint. As a member, you can go and file any complaint which you are disgruntled or which you have a grievance against the committee, which he is supposed to do, irrespective whether you do a 79A or not. मैं आपको इसी की मैं ये आपका एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई ये डेवलपर सेलेक्ट गलत किया कमिटी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यू आर ग्रीवियंट, यू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। दैट डज नॉट टेक अवे योर राइट एज अ मेंबर अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। वापस कॉन्वर्सेशन निकाला टेंडर्स का 3 और 15 का, तो मुझे अभी एक याद आया तो जो 15 आप चूज करने वाले हैं उसमें से 3 फाइनल आप ही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। 15 मैं इधर आएगा ना, 15 का सबका ऑफर आएगा, सबको आपका कंपैरेटिव मिलेगा। आप लोग डिसाइड करने वाले हो कि किसको रखना है आगे की स्टेज में, किसको नहीं रखना है। वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी और द सोसाइटी मेंबर्स। हम सब 17 मिलकर करेंगे, एक ही सोसाइटी का ये नहीं है। इट विल बी अ जॉइंट डिसीजन ऑफ ऑल 17 सोसाइटीज। So Sanjay sir, as you said, it is just a mere guideline of 79A. Is it correct that the registrar comes to that and that's a video recording, and if there's a grievance, he resolves it at that moment only in that 79A process, or he says कि इनको accommodate करिए? He is just a witness to the entire proceeding. Video recording तो irrespective आप आज भी कर रहे हो। हाँ। तो वो तो होने वाली है जब आप 79A हो या नहीं हो, जिस दिन आप डेवलपर सेलेक्ट कर रहे हो। So वो तो video recording is a good practice, which I have been telling them from the day one कि every proceeding we should video record. That is very good. That is very good. So this was my advice from the day one, irrespective we are following 79A or not. Till date, we have not deviated from a 79A process, but we don't want to put a stamp that we are following a 79A process. But again, I am coming to the same question. What is the harm if you do it? Because if at all in Sir, 79, then it has to be done by all 17. You cannot do it in isolation. So if other societies have decided, majority of them, that they want to have the, again I am telling you, 79A is only in our mindset today. It's just a directive. There are, I can talk to you separately what kind of monies are involved if a developer is told it is a 79A, letter has to be obtained by the registrar. It's a huge outflow which is required by a developer to get those letters. That is why we don't want to name it. It is developer's prerogative. He wants to go and take a letter. He is free to go and take a letter from the DR office. Society will never insist. Society will, what they will do after selection of developer, they will give a combined letter of intent, yeah, letter of appointment, which is signed by all 17 with common terms and conditions. but ठीक है, I also had that thought because in 79A, one thing is very important. Everyone has an option to go to registrar and everything. Let them go. That's a different process. But in 79A, when the objections are raised within that, and there's a majority, not by one का तो कोई मायने नहीं बनता है, 2 का मायने नहीं बनता, 3 का मायने नहीं बनता, 10 का भी नहीं मायने बनता है। अगर मेजोरिटी में कोई चीज़ें रेज होती है तो then that is taken into consideration. And it is all about majority. आप तो majority पे काम करने वाले हो, 51%. Not 51. मैं तो बोला भी हूँ sir, we should have 90% plus members agreeing to whatever process, documentation, etc. whatever we are following.
1, 2, 3, 4 मेंबर हर सोसाइटी में होते हैं, उनको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. So 51% may be a statutory requirement or 2/3 may be a statutory requirement. My endeavor is always that 90% plus members should be on board whenever whatever process we are adopting. So see, I don't know if majority have disagreed or not, because 79A is being asked by lot. ये मैं आज कमेंट नहीं कर सकता हूँ because जिस दिन आपने रीडेवलपमेंट का कंसेंट दिया है उस दिन you have to decide whether you want to follow 79A or No, not. but that was not an option given, sir. I have the video recording. मैं नहीं, I एक object to second. that. I Sir, object एक to that. second. I object to that. You are not getting my point. Yes. I have been appointed post your redevelopment consent and We have resolution. given. We have given. You allow me to speak here. I came on board once I got selected, right? There were certain processes which have been followed by the committee in consultation with whoever they have consulted. I don't want to get into it. So 79A follow करना है नहीं करना is the first resolution which needs to be passed by the society when the redevelopment consent is being given. Sir, I will like to tell you, वो कुछ पास नहीं हुआ है सर. हमने कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया हुआ है सर 79A के. We have no resolution passed and that is the reason I am coming to you. I think you can get irate, but मेरा भी पॉइंट सही है. मैं नहीं हूँ तो मैं कैसे जवाब दूँ? Absolutely, तो कोई रेजोल्यूशन 79A का नहीं हुआ है. आयरेट की बात करें तो मैं जवाब नहीं दे सकता. In our agenda notice that we had sent, we had clearly mentioned that this will be passed under 79A provisions. So directly or indirectly it was resolved under 79A when our consent was taken, which you did not give. But all the other members had voted that we should all go in for redevelopment. Then it is and it about was done under 79A. 79A provisions. Yeah. I have very clearly mentioned in my AGM notice that it will be done under 79A. So then we are following 79A. Yeah, so who is So denying that? then वही तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन क्यों वो क्यों बोले कि नहीं कर रहे हम. अरे भाई ये बात कभी भी नहीं है. बिल्कुल देना था ना. वो सीधा वही आप बोल दीजिए सर, आप बोल रहे हो नहीं करने वाले. So we are very clear कि we are following 79A. We are following. See, it is not compulsory and mandatory to follow 79A. But sir, But we are following. but we are following. But we are following. We are following. So we will do it. Yes, so we are doing. We are doing. So we will do it. Okay, then that's clear. तो मेरे को पहले बोलते थे हम लोग डिस्कशन ही नहीं करते इतना. अकेले होते हैं तो I would have made that statement. Principal we are following. वो तो बोला ना सर. एग्जैक्टली उन्होंने प्रिंसिपल में बताया है. बोला है मैंने तो सर. I just said कि we are following the process. But I don't want to put a stamp that we will follow, we should follow. वो रेजोल्यूशन आपके साथ शेयर है. आप कंसेंट का जब बात कर रहे हो ना, सेम लेटर में लिखा हुआ है 79A ना, वो बोल रहे हैं. ठीक है, I don't have any question. मेरा मैनेजिंग कमेटी से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बैठे हुए हर लोग और जो लोग यहाँ पे भी अटेंड नहीं है वो लोग भी सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं. इसमें कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए. इसमें खाली सवाल इतना ही है कि जो भी हो रहा है कुछ बातें अभी डेवलपमेंट की ऐसी है जो आप लोगों को भी समझ में नहीं आती है. आप भी पूरा उसमें आपको कोई पूरा समझ नहीं पा रहे, तो उसी के लिए हम लोगों ने PMC अपॉइंट किया है. बराबर है. तो ऐसा है कि जो कुछ भी बातें हो रही है या होने वाली है आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर आप लोगों को हमारे सामने लाइए. या ऐसा हो रहा है कि अगर कोई मीटिंग में कोई अगर अपोज कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है तो आप वो डेवलपमेंट के खिलाफ है या सोसाइटी के खिलाफ है, ऐसा प्रेजेंट हो रहा है. तो ये सब ऐसा पिक्चर नहीं होना चाहिए. ये कभी नहीं आएगा सर. ऐसा कभी नहीं सुनिए ना सर, ऐसा हो रहा है. मैं मतलब कुछ बातें ऐसी हो रही है ना तो उसके लिए बोलना पड़ता है. देखिए नहीं सर, जो चीजें हो रही है ना उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना. मुझे कोई चीज गलत लगेगी तो मैं सवाल पूछूंगा, मेरा हक है. बराबर है ना. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे अभी आपने अमित मेहता जी को अपन अपॉइंट किया था. बराबर है. तो उसके अंदर मैंने आपको सवाल किया कि आपने इसका टेंडरिंग किया था क्या? किया था. तो आपने सभी बताया नहीं. ने किया था मेरे पास इधर सब. तभी आपने बताया था किसी को टेंडरिंग किया करके. वो उस टाइम में हमने बताया था कि बाकी सोसाइटीज ने जो किया है वो हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इधर 17 सोसाइटीज का काम चल रहा है, एक सोसाइटी का नहीं है. तो 17 सोसाइटीज जो फॉलो कर रही है वो हम फॉलो कर रहे हैं, हम अकेले फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है. तो अभी आप मेरे को बताइए, हम लोग अभी अमित मेहता जी को यहाँ पे लाए, तो अमित मेहता जी आ रहे हैं, उनको हमने अप्रूवल भी नहीं दिया है कि हमको अमित मेहता जी चाहिए करके. बात सुनिए मेरी, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं.
तो तभी अमित मेहता आते ही क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कुछ अगर क्रॉस में बोल रहे हैं क्या कर रहा है तो उसका बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे। अरे भाई मैंने 8,500 रुपये मैं देने वाला हूँ। राजू भाई वो जनरल बात कर हाँ जनरल नहीं, सुनिए ना। अरे भाई हमारी मीटिंग में आगे बोल रहे हैं वो, हमारी सोसाइटी की मीटिंग में आगे बोल रहे हैं, हमने उनको अप्रूवल भी दिया नहीं है। आप गलत लाइन में जा रहे हैं। नहीं आप गलत लाइन में मुझे आप और कंप्लीट करने दीजिए। एजेंडा तो दिस इज द लास्ट एसडीएम की बातें वो सारे हो चुके हैं। एजेंडा एक्चुअली सुनो ना, ये एजेंडा की बात नहीं है, आप मेरी बात सुन लो। ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हो। एग्जैक्टली नहीं भाई राइट क्यों आपके ऐसा बोलेंगे? नो दीस पॉइंट्स वर आल्सो रेज्ड इन द लास्ट एसडीएम। This point was not raised. What It he's was telling. raised. No, he's telling something else. कि dissent. भाई मेरा पूरा सुन दो पहले, बाद में आप बोलो। आराम से मैं हाँ, आराम से बोल रहा हूँ। Dissent को take care करेंगे तभी का कोई बात नहीं होता। मेरे दोस्त लास्ट टाइम ना व्हेन forget your name Vishal last time also a lot of members, not only him or you or anyone, a lot of members said why is the person already on the desk? Wait, listen to me, वो listen point बात हो रही है क्या? listen to me, वही बात हो रहा है नहीं वो बात हो रही है कि क्यों आ dissent गए? को take care करेंगे, वो ऐसा मत बोलो। वो बात हो रहा है dissent को take care तो करेंगे। उसका ही बात कर लेना था ना। ये एसडीएम आउट किस चीज के लिए है ना मेरे दोस्त? we all have work. देखो भाई पहली बार ये नॉट एन आइटम ऑफ एजेंडा, हम इधर टाइम Exactly वेस्ट my कर रहे point. हैं। मैं एजेंडा को पकड़ के बोल रहा हूँ सर, मेरा बात पूरा होने दीजिए। बाद में आप बोले कि एजेंडा को पकड़ के नहीं है करके। आप थोड़ा शांति से बात कीजिए, आप ऐसी हल्ला मत कीजिए, थोड़ा शांति से बात मेरा कहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ एजेंडा को पकड़ के है, अगर नहीं हो तो आप बात बोलो, वो क्या गलत बोल रहे हो करके। कीजिए। आप थोड़ा शांति से बात कीजिए, आप मेरा पूरा तो होने दो, मुझे क्या बोलना है। शांति से बात कीजिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। हाँ तो मेरा कहना ये है कि तभी जब भी वो आए अमित जी और आके जो है उन्हें ऐसा स्टेटमेंट दे रहे, मैं 8,500 रुपये मैं दे रहा हूँ भाई आपको, मेरे जेब से जा रहा है और आप चैलेंज कर रहे हो सामने आके। आपका पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इस बात में। तो वो जनरल बात मुझे कर पूरा रहे होने थे। दो, पूरा करने दो मुझे। तो उसका मेरा कहना ये है कि भाई ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए अब ये कभी आप बोले टेंडरिंग किया है। अब ये बात का मैंने कभी सवाल किया था, आपने जवाब उसका दिया नहीं। हमने बताया था कि बाकी सब के नहीं, हिसाब आप से बताइए मेरे को, रिकॉर्डिंग बताइए मेरे, वहाँ पे मिनट से बताइए, मैंने पूछा और आपने जवाब दिया उसका नहीं दिए, अभी वो छोड़ दो, अभी छोड़ दो ये। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी चीज़ें होती है, जैसा भी टेंडरिंग आज हमारा विषय चर्चा कर रहे हैं, सब लोगों का भी, जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग बोलते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है वो नहीं बोलता है, बराबर है ना। तो इसमें जो चीज़ें अभी हम लोगों ने जो विषय प्रेजेंट किए यहाँ पे, वो सारे विषय टैंडर में आके आप जो भी टेंडरिंग में करेक्शन होगा वो करके आना चाहिए। वो तो आएगा ना, बोला ही है। उसके बगल तो होगा तो बोला ही है, हाँ। सब नोट किया है ऑलरेडी। इसको जिसको जो भी लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हर आदमी चाहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि जो सवाल पूछता है वो आदमी गलत है, जो नहीं पूछता है वो सही किसने बोला है। ऐसे? किसने बोला ऐसे? कि आप गलत है, कि वो गलत है, कि ये गलत है, किसने बोला ऐसे? आप लोग का आर्ग्यूमेंट उसके बगैर तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। अरे लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम एसडीएम के बगैर कुछ भी नहीं करने वाले, मैनेजिंग कमेटी का क्या पावर? क्योंकि अभी सब सिंपल बात ऐसी है कि अभी देखो, अभी मैं भी बिल्डिंग डी नगर 40 में मैं भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा भी फ्लैट है, हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे DN नगर में, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है। अगर मेरा इतना ही कहना है कि PMC होवे, मैनेजिंग कमेटी होवे या अपने अमित जी होवे, कोई भी होवे, ये लोगों के बारे में सोच के आगे बढ़े। अभी कोई चीज़ अभी ये सब बोल रहे हैं कि बाबा नहीं है, ये टेंडर ऐसा नहीं करना है, फिर इतने ही बिल्डर लाने हैं, फिर इतना अपन डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग भी आपके सामने आएगा, उसके बाद होगा ना ये। आप अकेले से पण आपण राईट देतोय ना त्यांना, आपण आउटलाईन देतोय ना। टेक्निकल टेंडर इसीलिए तो रखा है, जो भी टेंडर दिया था डॉक्यूमेंट आपका सजेशन। आपण त्यांना आउटलाईन देतो ना की बाबा एवढं आम्हाला हे पाहिजे करून, एरिया वाढून पाहिजे करून, ते नाही व्हायला पाहिजे ना। कि आपके बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेंबर्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा, सामने भी वही बोला कि मेंबर के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग को डिसाइड करना हाँ करेक्शन करके आने दो। Okay, so since you're talking about a tender and there will be an FSI included in this, builder जब apply करता है एक additional FSI के लिए, obviously करेगा ही because he needs to make money out of what he's doing. The allotted FSI standard on the plot size that is being acquired by him, those documents will be shared with the members कि builder ने कितना acquire किया है, कितना है और हमें कितना allot हो रहा है. Considering the offer in the bid, in the commercial bid,
हम अगर जोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना एरिया मिलना चाहिए So FSI, TNC ने वर्कआउट किया, FSI TNC को पता है कि क्या डेवलपमेंट पोटेंशियल है. करेक्ट होना चाहिए आपके पास There is no additional FSI which can get loaded after the development agreement. so there is no allocation Let me finish now. There is no FS. The even DA will also specify what is the specify the FSI quantum, what is being used on the plot, which I told 4 plus fungible. So that FSI will be part of your DA. How much is getting into members, how much is getting into sale also will be specified in your development agreement. मान लो आपका DA होने के बाद, IOD आने के बाद there is a change in FSI, which is beyond 5.4, and he has additional height to consume. He has to come back to us and understand the sharing ratio, sharing mechanism, take our approval, then only he can load. और आपको जो मैंने अभी टेंडर कंडीशंस पढ़ा भी है, I have already mentioned IOD for full potential. When I say IOD for full potential means I am talking of IOD of 5.4. When he will give us a IOD copy of 5.4 only, then I will get into PAAA. Otherwise, I am not here to start executing PAAA without understanding आपका यूनिट कहाँ पे है, उसने क्या FSI डाला है. This all will has to be reconciled and checked with what is captured in your DA, vis-a-vis what approval he has taken, and PAAA is your new ownership document for the flat. It has to specify the area, RERA carpet, floor, balconies if any. Everything has to form part into your PAAA, which will be your new ownership document for next 50 years. So, without satisfying ourselves into all these aspects, we don't even ask society to look at a vacation. So vacation notice follows only after the approval is done, and then only once the PAAA is executed, then only we ask the members to start vacating. but the transparency will be there right with Without which it is impossible to go ahead into the आया development. है how much this बता रहा हूँ आपको, IOD when I talked about full potential, it means the entire last square meter जो FSI है वो available, उसका IOD मिलना चाहिए उसको. Sir, before we vacate the building, building floor, even the flat number will be allotted. Even the flat numbers will be like PAAA के अंदर आपका पूरा exact नया number एग्रीमेंट आएगा. नया एग्रीमेंट जो छोड़ दिया और जो नया मिलने वाला है जो हैंड ओवर होगा और क्या आप एडिशनल एरिया बाय कर रहे हो, जी, उसका जी। कंसीडरेशन क्या दे रहे जी, जी, हो, जी। उसका GST, उसका स्टैम्प ड्यूटी होगा, सबका मेंशनिंग जो होगा. एक्स्ट्रा एरिया हम परचेस करेंगे सर उसका स्टैम्प ड्यूटी आएगा, जो हम लोग एक्स्ट्रा मिलने वाला उसका कुछ नहीं भरना है. एंड फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम शेयर करेंगे हम सर. मैंने अभी तो बताया सर सर मैं पूछ रहा कि नहीं. सर वो 17 सोसाइटीज की फिजिबिलिटी बनेगी, हाँ जी. वो एक बार बाकी सब सोसाइटी से बात करके कैसे डिसीजन होता है, आई विल कम्युनिकेट टू योर कमेटी. फिजिबिलिटी का होगा तो एटलीस्ट इवन वी कैन कम टू नो कि वो क्या उसका प्रॉफिट है, क्या मैक्सिमम वी सर अपने को डेवलपर एक बात बताता हूँ सर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. आई वर्क विद डेवलपर फॉर 15 years बिफोर आई स्टार्टेड माई एडवाइजरी. आई अंडरस्टैंड डेवलपर कैसे सोचता है. When I sit now with the developer, he cannot argue with me because I understand his books very well. हम जो फिजिबिलिटी बनाते हैं, जो हमने पहले भी 35, 36, 37 की फिजिबिलिटी बना के दी, हमने पूरी डिटेल फिजिबिलिटी बना के दी है फ्रॉम अ डेवलपर माइंडसेट. डेवलपर माइंडसेट में डेवलपर के जो एक्सपेंसेस है वो तो सब हमने फिजिबिलिटी में डाल दिया. एक ही चीज जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है या वेरिएबल होती है, इज योर सेल प्राइस. एंटायर फिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सेल प्राइस. आज कल्पतरू 45,000 लेगा, आज बिरला 50,000 लेगा, आज रेमंड 48,000 लेगा, मेरे हाथ में नहीं है सर. अप्रूवल का कॉस्ट चाहे कल्पतरू लो, रेमंड लो, बिरला लो, सबका सेम है. रेंट कॉर्पस आपके साथ जो एग्री किया वो सेम है. आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोर और लेस सेम है सबका. क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है. बट व्हाट डिफर्स? सेल्स कंपोनेंट. सेल नंबर विच नो डेवलपर इज गोइंग टू डिस्क्लोज कि मैंने 45,000 अंडर राइट किया है, मैंने 48,000 किया है या मैंने 40,000. रेट्स भी डिफर होते रहेंगे, मतलब एवरेज रेट तो अंडर राइट करेगा ना. पहले आपको 20 ऑफर देने से पहले वो एवरेज रेट तो अंडर राइट करेगा ना अपनी फिजिबिलिटी में कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एवरेज 45,000 बनाऊंगा, 48,000 बनाऊंगा, 50,000 बनाऊंगा. उसी के हिसाब से तो वो FSI उसके हिसाब से तो आपको Exactly. एडिशनल एरिया देगा, वो उसका एक मार्जिन होगा
कि मेरे को एक 2000 करोड़ पे 400 करोड़ बनाने का है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सब। अच्छा आ गया तो ये सब चीज़ें तो डेवलपर के दिमाग में है सर। आप मेरे को बोलो कि उसने आपको ऑफर देने के बाद अगर उसकी फिजिबिलिटी बनानी है, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिजिबिलिटी बना के दूँ। ठीक, बस वही बड़ा एग्जांपल थोड़ा और जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर है जहाँ पे पूरी फिजिबिलिटी चेंज होती है वो आपका सेल प्राइस है। या उस टाइम पे बिके नहीं बिके, हायर फ्लोज बैक साइड फ्लोज सर मार्केट आप बहुत मैंने 3 साइकिल देखी है रियल एस्टेट की अंदर जहाँ पे डेवलपर्स, बेस्ट ऑफ द डेवलपर्स हैव स्ट्रगल टू सेल द इन्वेंटरी इंक्लूडिंग कोविड पीरियड। ओके, थैंक यू गाइस, thank you so much for your patience and listening to What us. are we doing today? We approve only the technical part of the tender. Is it? Yeah. This is Commercial bid, whenever it will be submitted, we will have another STM and we will decide at that time. Today we are approving only the technical part of the tender. Okay? So is everybody ready with that? Please resume. Thank you. Thank you. So that was the first part of the agenda. You can I really love answering the queries and the question because I also learn in the process. हो सकता है मैं 100% एक्यूरेट नहीं होता हूँ सर, बट कई बार जैसे आज काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे एक पॉइंट इन्होंने रेस किया था विशाल ने, बिकॉज इफ आई एम एबल टू शेयर माई नॉलेज विद हिम आई एम मच मोर हैप्पियर एंड दिस इज माई पैशन एक्चुअली. इफ यू आस्क मी, रियल एस्टेट इज माई पैशन. I started this advisory only with that intent that I should reach out with my knowledge and experience to as much as I can. Because redevelopment में जब तक आपको पूरी knowledge नहीं होना सर, half knowledge is suicidal if you ask me. आपने जो अभी वो gossip वाला बात किया ना सर, these things are suicidal, which members don't understand. वो तो क्या है, बात बनाने के अंदर कि चलो हमको ये सब पता है करके and they want to say कि we have an upper hand. ऐसा कुछ नहीं होता है सर. Knowledge sharing is very very important, ताकि जब when you talk to next time to somebody you understand what you are talking. That is where I really enjoy. तो मेरे को ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मेरे को खराब लगती है. मेरे को इस प्रोसेस में मैं खुद कई चीज़ें सीखता हूँ and I really love sharing my knowledge with the team. अभी जैसे डिज़ाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें की, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ सर, मैं लॉयर हूँ, बट इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लिए 15 साल में डेवलपर के कि अगर मेरे को कोई कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट के साथ आप बैठाओगे तो आई विल मेक अ बेटर प्लान एज कम्पेयर टू हिम. बिकॉज कल्पतरू में काम किया तो वहाँ पे सबसे पहले ये की होता था कि प्रोडक्ट हैज़ टू बी राइट. रूनवाल में काम किया तो हमेशा यही सीखा कि क्वालिटी हैज़ टू बी गुड. तो ये सब चीज़, और हमने ये 15 साल में एक्सपीरियंस कर लिया है डिज़ाइन में कहाँ हाथ खाते हैं, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ द डिज़ाइन, कैसे अपने को, अच्छा खुद एक घर में रहते तो अपने को पता चलता है कि घर में डे टू डे क्या चीज़ें चाहिए. आर्किटेक्ट वो नहीं सोचता है सर, हम सोचते हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से. आई हैव हैंडल्ड सेल्स ऑल्सो, so I have interacted with the customer where I have learned from the customers के what they look at in terms of buying an apartment, and that goes into my design philosophy. So as a team अगर अपन काम करेंगे ना, we will always be into a winning situation sir. यहाँ किसी को अपने को एलिगेट करके कि ये प्रोसेस किया नहीं किया, प्रोसेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कंप्लायंस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, किसी से रह सकता है, बट वी शुड constructively take it as a learning for the next time, and we should improvise upon that so that these mistakes or these things doesn't appear in future again. So sorry, but ये बहुत important था आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर अपन एज ए टीम काम नहीं करेंगे ना तो we cannot reach anywhere sir, for sure. Well said. The next agenda is to discuss and get the approval of the general body of members about the payment of stamp duty by society on behalf of defaulting members against the demand notice received from the collector of stamps forwarded to all members in the matter of conveyance of land. अच्छा, अभी इसमें ऐसा है
we have received an order from the stamp duty office, stamp collector's office. So now they have come up with stamp duty collection from 4 members, जिन लोगों का past duties payment clear नहीं हुआ है. तो उसमें से one is flat number 2, उनका past duty collection और उसके ऊपर 400% penalty को लेके 92,000 होता है. Flat number 2, flat number 38. Flat number 2, everybody may know Priya Singh, Miss Priya Singh. Flat number 38, Mr. Andre Ungar. उनका तो बिफोर 3 मतलब मेंबर्स उनका ड्यूटी नहीं पेमेंट हुआ था, मतलब फुल ड्यूटी हैड नॉट बीन पेड बाय द मेंबर एट दैट टाइम. तो बाद में एमनेस्टी स्कीम में भी वो लोग ने ड्यूटी पेमेंट. Sir, I just got the feedback. So I spoke to Tarun Mota while I was sitting here. I messaged him. I just called him up also, so that we all have to be on same page. Otherwise, I would have put a number, but I don't wanted to put that number. So he has come back to me with a rent of 125 and corpus of 2,000 rupees, which he would fill up in the commercial bid, and we can share it back to you. You guys can then take a call how you wish to take it forward. Okay, we'll take it up in the next SDM. We'll take it in the next SDM. Please send us in writing. But we can take up from there. Vishal, one suggestion, and it's my suggestion and everyone can disagree, is that we can also pass that resolution with regard to the commercial with the point that 2,125 is the number. That will save us one more SGM. There are many points that are going to come in the next SGM also. We can approve by that when the commercial bid document comes. Done. Because in that, अच्छा, continuing from there, Mr. Andre Ungar का उस टाइम का 51,200 ड्यूटी was due to be paid. मतलब पहले इन लोग ने 85-87,000 पेमेंट किया था, but that was not enough as per the stamp office. So the difference was 51,200. But later on इन लोग ने ना तो एमनेस्टी स्कीम में पेमेंट किया ना सेपरेटली कोई पेमेंट किया. तो नाउ द स्टैम्प ऑफिस है 400% पेनल्टी उसके ऊपर, तो 2,04,800 रुपये का पेनल्टी लगाया है. एंड द टोटल अमाउंट पेएबल इज नाउ 2,56,000 बाय फ्लैट नंबर 38. देन फ्लैट नंबर 67 एंड 68 दोनों का जो 85 का ये था ड्यूटी पेमेंट का था, लेकिन उन लोग ने उस टाइम में क्लियर नहीं किया. त्रिलोक देसाई एंड मिसिस विजय अय्यर. But both the current members have taken upon themselves, and इन लोग का ड्यूटी था 22,050 रुपया for each flat because of that period. So that duty also has been paid. Now, out of the 4, Mrs. Suman Goenka, Miss Ankita Patil, Mr. Andre Ungar have made the payment of duty to the, matlab they have paid to the society, and society will pay the amount to the stamp office. Over and above that, the society has to pay a stamp duty of 500 rupees per member to the stamp office. तो उसका, since these 4 have been taken out separately, तो बाकी 52 members का the duty is coming to 26,000, and 500 rupees is for conveyance deed registration. So that comes to 26,050, 26,500. But the point now is flat number 2, Miss Priya Singh, she is refusing to make payment of this 92,000 rupees. She is flatly saying कि मैं क्यों दूँ, मेरा थोड़ी है, मैं नहीं दूँगी, ये तो उन लोग का आगे वाले का है. We tried to explain to her कि भाई now you are getting a better quality flat, better value of your flat, you can sustain so much amount 92,000 का, तो वो भी मैं क्यों लॉस में जाऊँ. So now we have to pay this, otherwise we will not get our conveyance. Conveyance आएगी नहीं अपनी. तो हम लोग अभी ये भी सजेस्ट किए थे कि भाई आपके तरफ से हम मेंबर्स को पूछ के भर देंगे, which you also pay in parts if possible. That also she is refusing. But if we all decide, if the committee, if all the members decide, okay, we have to pay and we recover the money from her,
or we put it in her account, let the interest get collected on her, and when the time of corpus comes, let the developer take it from her. So that's what we need, an approval from you all members. She has to agree to that. OVC is not agreeing to that also. वो भी एग्री नहीं कर रही है, इसीलिए तो आप लोग के पास आए हैं। 92,000 करना ही पड़ेगा। 92,000 is only left out of 4 lakh. Yes. Rest is clear. ये डिमांड है, ऑफिस स्टैम्प ऑफिस डिमांड है। So we have to pay total 4,18,000, out of which 92,000 is to be collected. That's it. Out of 4,80,000, 92 is pending or the entire 4,92 is 92 is pending. The members have paid to the society, which we will pay to the stamp office. 500 जो है वो एवरी मेंबर को निकाल सबका है, वो आप शायद वो सोसाइटी की तरफ से जाएगा। ये तो मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया कि इट इज 500 पर मेंबर। हाँ, सोसाइटी विल बेयर दैट 500 रुपया। आप उसको ले भी करेंगे कि हम लोगों के या अरे मैं अभी बोल चुका हूँ, सोसाइटी पे करेगी। बहुत पैसा है नहीं, इतना भी नहीं है, लेकिन 26,000 तो है। सर मुझे एक क्लियर करना था, ये जो 92,000 का नोटिस आया है ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा ना A2? हाँ बिल्कुल है ना, तो इट इज वो नोटिस का भी उनको तो दिया ही होगा ना? ऑलरेडी मेरे पास लेटर्स है तो सबके। उसमें कोई ऐसा तरीका है कि हम स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर जो भी रजिस्ट्रार है उसको बोले कि A2 का आप दूसरा उसके नाम से ही नोटिस निकाल? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वी ट्राई टू डू दैट अपना वो प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअली। हाँ, हमने वो बात किया, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। वो नहीं हो पाएगा। शी इज फ्लैटली रिफ्यूजिंग। तो आप क्या कहते हैं, सोसाइटी बेयर करें? वो तो माय क्वेश्चन है, मेरा क्या पूछने का है सर, कि जो बंदी बोल रही है कि मैंने देना नहीं है, अगर आप पैसे भरते हो तो मैं वो बाद में भी मैं नहीं दूँगी, मैंने नहीं भरना है पैसा, और आज हम भरते हैं और कल को विल ट्राई टू क्लेम फ्रॉम अ कॉर्पस और मे बी फ्रॉम अ रेंट जो अपने को मिलेगा बाद में, वेकेटिंग द सोसाइटी, एंड देन सेड कि मैंने तो बोला ही नहीं था भरने के लिए, एंड आई सेड आई विल नॉट गिव ऑल्सो, तो फिर वो हमारे पे ही केस कर देगी। वो केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक मिनट दिस इज अ हाई कोर्ट डिसीजन, हाई कोर्ट जजमेंट कि एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी का पैसा कुछ ड्यू सोसाइटी को रहता है तो दे हैव टू पे, इवन इफ इट इज फ्रॉम द पास्ट मेंबर, इवन इफ इट इज फ्रॉम द पास्ट मेंबर, वो उसको सोसाइटी को पैसा देना पड़ेगा। दैट इज अ हाई कोर्ट रूलिंग। तो वो ना नहीं कर सकती। हाँ, सर आपने भी तो जो पीछे इन्होंने नहीं भरा था वो तो आपने भरा ही होगा। इन्होंने भरा 67, 68 वालों ने, दोनों ने भरा, खाली ये मना कर रही है। तो अभी हम लोग को खाली आप लोग से यही अप्रूवल लेना है कि हम लोग इसको पेमेंट करें या ना करें। जी, मेरा पैसा है, मैं क्यों लूज में जाऊँ, मैं क्यों लॉस में जाऊँ? पुराने वाला क्या है, मैं क्यों लॉस में जाऊँ? Sir, one thing I'll tell you, see this. We can't find them. He's so sold and left. तो भरने ही नहीं वाला। Sir, one thing I'll tell you, in 42 ना, they had paid some society account. Very good, they did it. Something around 20 lakh. Then the member came and told later on, कि आपने मुझसे पूछा, आपने मेरे से रिटर्न कंसेंट लिया, आप मेरे से रिकवरी नहीं कर सकते हो। Now one thing I want to ask you, you must have you sent her a notice on legal paper saying that this legal is paper, we have sent a request, formal request to all the members, yes, all members. नहीं, so you have sent it in writing, right? Yes, of course. So has she replied in writing? No. Please tell her to reply in writing. We can take the call.
बट क्या है ना, वो राइटिंग में लिख नहीं रही है कि मैं नहीं भरूंगी। कल को हम डिसीजन ले लें, वो बोलेगी मैं नहीं भरूंगी, ऐसी रेजोल्यूशन कैन बी चैलेंजिंग, शी विल नॉट पे। हमारा कन्वेंस नीड तो हमको चाहिए, वी वांट टू गो अहेड। यू शुड पुट इट इन राइटिंग टू हर, टेल हर इन रिप्लाई इन राइटिंग, एंड देन पुट द लीगल क्लॉजेस टू हर सेइंग कि यू आर लायबल टू पे दिस, क्योंकि टुमारो इफ शी कम्स ड्यूरिंग वेकेटिंग व्हाई व्हाटएवर आईओटी व्हाटएवर आई नो, लीगल टेंगल नहीं होना चाहिए बोलते कि मैंने आपको अप्रूव थोड़ी किया था, मैं मीटिंग में भी नहीं थी, चलो वो उनका लुकआउट है कि उनको आई टेल यू व्हाट, हमने उनको ऑफिस में बुलाया था, हाँ। वो मेरे ऊपर डाल रही है कि आप निपटाओ डेवलपर के साथ, मैं नहीं जानती। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वो तो हम क्या निपटेंगे। What if she doesn't do it in writing? Let's say they ask her for it and she says, I want you to So send a legal notice saying that if you don't respond in so many days, we will have to take a call because the building's redevelopment is jeopardy. But one minute. There is a catch here. Actually, we had to pay this by 15 July. But because of this unfortunate incident last Sunday, we could not take up the matter, Yes. and that duty, that time has left actually. But we have approached the stamp office to our lawyer. They said they will take care of it. But now we have to pay this duty immediately or within the next 1 week. Sir, we are telling that everyone can abide by it, but in 10 days में करना है ना, तो एक खाली नॉर्मल लीगल नोटिस भेज दीजिए, भिजवा देंगे, वो भेज करेंगे। दीजिए और बोल दीजिए कि अगर ये नहीं होगा, we have taken up this in the AGM, all members have suggested that you should pay, if you don't pay, then this will be done through Fine, वो करेंगे। developer, but we or have maybe to. if you want to put it in a bill, देखो बिल में डाल बिल में ही डालेंगे। बिल में डालेंगे, बिल में ही डालेंगे। एरियर बढ़ते रहेगा, फिर वो रजिस्टर का एक और खर्चा हो जाएगा हमारा। बिल में ही डालेंगे। हाँ। या। अगर सोसाइटी बढ़ेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा देना। लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। बट एक मेंबर की वजह से पूरा प्रोसेस डिले नहीं होगा। नहीं हो सकता है, इसीलिए सो वी जस्ट वांटेड टू गेट द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स के हम लोग 92,000 ऐड करके वी विल मेक द पेमेंट ड्यूरिंग दिस वीक इटसेल्फ। अगेन अपने पास इतना पैसा है ना, है इतना है। नहीं, बट कंप्लीट एंड लीगल फॉर्मेलिटी करेंगे। लीगल नोटिस यू हैव टू पे ना, नहीं, वी कांट वेट टिल लीगल नोटिस, तो वील गेट योर अप्रूवल, बट इन द मीन टाइम वील सेंड लीगल नोटिस। पहले तो बोलो कि 7 दिन में नहीं भरोगे, आपको सोसाइटी को भरना है ना, आपको सोसाइटी को भरना है, हम तो जा सकते हैं आगे, आपको सोसाइटी को भरना है। वही तो आप प्रोसेस लीगल नोटिस पेमेंट के पहले भेज दें, वो कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। नहीं भरोगे, वी आर गोइंग अहेड, मेंबर्स डोंट वांट देयर टीम पेमेंट्स टू स्टॉप। इसमें फिर एक और कैच है, फिर अगर लीगल नोटिस का हम करेंगे तो उसका लीगल खर्चा लगेगा, तो वो भी उसको डेबिट करना पड़ेगा। 3,000-4,000 रुपए दे देते हमारे। नहीं, मैं खाली आप लोग तो बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से लीगल चार्जेस प्रीवियस AGMs या SGMs में हुआ है। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ नॉलेज ऑफ मेंबर्स, खाली बात कर रहा हूँ मैं, ये खाली। आपको लीगल वाला कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज़ देयर इज अ कैच इन दिस, इट हैज हैपेंड इन 42, नाउ दे आर इन रजिस्टर। बराबर है, ठीक है। तो इट इज अप्रूव्ड के वी विल पे ऑन बिहाफ ऑफ मिस प्रिया सिंह टू द स्टैम्प ऑफिस एंड सेंड द लीगल नोटिस, और आफ्टर वी सेंड द लीगल नोटिस वी विल मेक पेमेंट टू द स्टैम्प ऑफिस एंड आस्क फॉर मतलब रिप्लाई टू द लीगल नोटिस, ठीक है। अगर उतना टाइम है कि आप वो आपके टाइम तो नहीं है सर, तो फिर पहले भर देना। टाइम तो निकल गया, ये तो खाली एक्सटेंशन है। लीगल नोटिस और फिर वो लीगल नोटिस जाने दो कल परसों। लीगल नोटिस दे तो बिकॉज़ इट विल बी अ कैश सिचुएशन, देन शी कैन डन करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। उनको everybody pardon? That is different. This is only for flat number 2. 26,000 is to be paid by the society. वो तो हम कर देंगे, तो सर ये पेमेंट करने के बाद अपने हाथ में कितने दिनों में बिल आएगा?
डीड ऑफ कन्वेंस साइन होगा, रजिस्टर होगा, फिर भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई कांट गिव यू, लेकिन 3-4-5 महीने तो लग जाते हैं, क्योंकि ये होगा ना। आप देखिए, हमको ये कन्वेंस का ऑर्डर मिला था लास्ट जनवरी, अभी उसको 1.5 साल हो गए। एक काम ऐसे ही चलता है। सॉरी, लास्ट अक्टूबर में कन्वेंस ऑर्डर आया था। लास्ट अक्टूबर में कन्वेंस ऑर्डर आया था। फिर हम लोग ने हमने सब पेपर सबमिट किए स्टैम्प ऑफिस में। स्टैम्प ऑफिस से ऑर्डर आते आते अभी ये 15 जून को ऑर्डर आया है। अब क्या करें, ऐसा ही है। तो एज लॉन्ग एज दे टेक वी कैन गेट इट। उन लोग को जितना टाइम लगेगा वो देते ही है। ये होने के बाद कन्वेंस डीड होने के बाद जो प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट होगा उसमें थोड़ा सा समय मोस्टली दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस। Okay, that brings us to the end of our meeting today. Thank you very much, everybody. Thanks a lot. अच्छा, मुझे एक सवाल करना है कि जो SGM होता है उसका जो मिनट्स आप सर्कुलर करते हो, तो इस मीटिंग में नहीं कर रहे हैं। इसमें